अभी EF3 है क्या? हाँ, EFN3. ओके ओके ठीक है, करता हूँ फिर। हाँ, मैडम कीजिए ना, अभी अभी हो जाएगा आपका, कीजिए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम थी क्या? हाँ, कुछ प्रॉब्लम थी, सॉर्ट आउट हो गया, आप हो जाओगे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अतुल सर, गुड आफ्टरनून। अतुल सर, आपको सुनाई दे रहा है? अतुल सर, गुड आफ्टरनून। हेलो। गुड आफ्टरनून शुभांगी मैम, गुड आफ्टरनून। आपकी बात हो गई? हाँ सर, की बात हो गई सर। Okay. So here we are at the English Forum Nagpur platform, and this webinar is very essential for all of us today. We have invited Mr. Kuldeep Burn sir, who is with us to guide us on various issues pertaining to emotional intelligence, self-awareness, and self-growth. And with this brief introduction, let me introduce our co-host, Mrs. Shikha Baveshi. Today's webinar is going to be introduced by Dr. Shubhangi Pankule ma'am, and I'm the host. Over to you, Shubhangi ma'am. Please introduce our guest today. Yes sir, thanks a lot. Good afternoon one and all. Since last 2 months, we the English Forum Nagpur is with the series of webinars, panel discussion with the education department dignitaries and the administrators of the various institutions. Need of the hour is that we must be decisive, emphatic, exuberant, and gregarious too. To make us aware about all these virtues, English Forum Nagpur has organized yet another webinar which will supplement teachers with more skills, which can make us much facilitator in present time. Welcome, Mr. Kuldeep Ban. Welcome you, sir. Thank you. On board, executive body, all the participants. So let us all get introduced to this renowned personality. Kuldeep Ban is a personal development and a motivational speaker. He is a highly rated experienced coach focused on developing confidence and social skills in individuals to foster their personal growth. He also works as a freelancer in video editing and making professional PowerPoint presentations, create blogs, websites, and YouTube channels for his clients. He is a master of computer application, Sikkim, Manipal University. He has done his Japanese language course, JLPT3, from Nozomi Infotech, Nagpur, and diploma in advanced web technologies and software engineering. At present, since from 2012, he is regularly into counseling the individuals. These are the main areas he is focusing: reprogramming of subconscious minds and enhance their skills. He also conducts various workshops on online courses on journal writing. And he has participants from Jamaica, Spain, and all over.
Kuldeep Ban's Successography on YouTube channel is also gaining quite a popularity. Today, he would also focus on difference between journal writing and diary writing. And sir, as you're going to speak on emotional intelligence, self-awareness and self-growth, we would request you to throw light on the present scenario, a fresh incidence of a superstar, Sushant Singh Rajput's case, and guide today's generation how to shoulder the responsibilities, how to act mindfully, to be sensible, be self-aware, be self-conscious of their behavioral pattern. We welcome you, sir, to speak on your today's topic, generalizing for emotional intelligence, self-awareness, and self-growth. Once again, welcome you, sir. The floor is yours. Thank you. Thank you, ma'am. First of all, thank you all of you. आप सभी की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे अपने कुछ थॉट्स शेयर करने के लिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ये जो सेशन आज मैं आप सभी के साथ लूंगा, इट विल बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, सो दैट कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी में इजीली समझाए जा सकते हैं, हमें समझ में भी आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. Let me share the presentation slide so that we will start our session today. Okay, so I have shared the screen, PPT screen. I hope you all are getting the screen on your screens. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Okay, so let's start. So today's topic is a very vast topic जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अवेयरनेस आने वाला है हम सभी के लाइफ में. इनिशियली हम सभी को पता है कि जर्नल राइटिंग क्या है, डायरी राइटिंग क्या है. नॉर्मली आई विल स्टार्ट विद द डायरी राइटिंग. तो नॉर्मली हम सभी को पता है कि डायरी राइटिंग करना चाहिए और डायरी राइटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं, राइट? So let's start today's session. First of all, my name is Kuldeep Ban, जैसे मैम ने बताया, और these all are my few details. Successography is my YouTube channel where I post videos related to growth, how we can grow in our life. It's a short information for you. So let's start with diary journal. हम में से बहुत से जो है, हम सभी ने सुना है कि डायरी राइटिंग करना चाहिए या जर्नल लिखना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन कि एक्चुअली में ये है क्या, ये करने से क्या होता है. यू नो, जैसे आज मैंने आज के जो इवेंट्स हुए वो लिख दिए, या फिर कल क्या मैं एक्शन में लेने वाला हूँ, एक्शन प्लान कल का क्या है, और ये हमने लिख दिया डायरी में. सो दैट इज द राइटिंग. इन जनरल हम सभी को ये पता है. तो बेसिक थिंग्स क्या है वो हम देखते हैं. इट इज अ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल दैट इनेबल्स यू टू एक्सप्रेस फीलिंग्स. सी, स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं. इट्स अ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल. राइटिंग अ डायरी और अ जर्नल, इट इज अ टूल. फर्स्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कंसिडर इज कि ये टूल है और हमारे जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. The second most important point is it is a safe place to free the creative child within you and experience the full range of your imagination. तो क्रिएटिव चाइल्ड हमारे अंदर है और हमें उसे एक्सप्रेस करना जरूरी है. उस जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो भी हमें इमेजिनेशन आता है, उन सभी चीजों को हमें एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. और उसके लिए जर्नलिंग या डायरी राइटिंग is the best tool through which we can experience ourselves. तो ये basic चीज है, basic points है, that from these points we will start our session. तो starting हम कैसे करेंगे? We will start with Bruce Lee. Bruce Lee के बारे में हम सभी को पता है कि Bruce Lee कौन है. He is a very famous Hollywood actor जो एशिया से थे. तो
उन्होंने डायरी राइटिंग अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, जर्नलिंग वो करते थे और उनके बुक्स भी बहुत फेमस है, जिसमें द लेटर्स ऑफ ब्रूस ली, इस तरह से कुछ बुक्स फेमस है उनके, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ ये एग्जांपल लेने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ब्रूस ली का। ब्रूस ली ने अपने आप को एक लेटर लिखा था और वो लेटर रोज या हफ्ते में एक बार खोलकर पढ़ते थे कि दिस इज माय गोल, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। तो गोल क्या था, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने शेयर किया है स्क्रीन में, माय डेफिनेट चीफ एम। तो उसने अपने आप को ही एक लेटर लिखा, उसमें क्या लिखा मैं पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा फास्ट। आई ब्रूस ली विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ये यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार है, ये अपने आप को बता रहा है। In return, I will give the most exciting performances and render the best of quality in the capacity of an actor. Starting 1970, I will achieve world fame, and from then onward till the end of 1980, I will have in my possession 10 something million dollars or whatever. I will live the way I please and achieve inner harmony and happiness. तो ये एक लेटर उन्होंने अपने आप को लिखा, और कब लिखा ये 1969 जनवरी, और अपनी साइन भी की। और कौन से पीरियड से, फ्रॉम 1970 टू 1980, ये जो भी इन्होंने लिखा है, ही वांट्स टू अचीव दीज एम्स या गोल्स। तो इस तरह से उन्होंने लिखकर अपने आप को रिमाइंडर दिया कि आई एम गोइंग टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। इतना वो एकदम पॉजिटिव थे, कॉन्फिडेंट थे, और विदिन 4 years उन्होंने ये अचीव कर लिया। ये एक पहला एग्जाम्पल है व्हाई द डायरी राइटिंग इज इम्पोर्टेंट या जर्नल राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। हम भी अपने आप को एक ऐसा लेटर लिख सकते हैं जिसमें हमारा जो गोल है, हम क्या करने वाले हैं लाइफ में, हमें किस लेवल पर जाना है, क्या अचीव करना है, वी कैन ऑल राइट ऑल दोज थिंग्स इन आवर जर्नल और इन आवर डायरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दिस इज द वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी, जेके रॉलिंग। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। जेके रॉलिंग एक ऑथर है जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी है। हैरी पॉटर 1 से लेकर हैरी पॉटर 7 तक के जितने भी नॉवेल्स हैं जो फिक्शन में आते हैं, वो इन्होंने लिखा है। तो इनका एक बहुत फेमस किस्सा है कि जब ये एक जगह से ट्रैवल कर रही थी, लंदन से कोई और जगह पे, तो उनको थ्रू आउट द जर्नी, ट्रैवलिंग के टाइम पे हैरी पॉटर लिखने का थॉट आया। एक थॉट आया अचानक से कि मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए, और उस टाइम पे उनके पास कोई भी डायरी या नोटबुक या कॉपी नहीं थी। तो व्हाट शी हैज डन कि उनके पास जो कागज के टुकड़े थे, चिट्स, जैसे टिकट पुरानी कोई होगी या पुराना कोई कागज रखा होगा, तो वो लेकर के उसमें उन्होंने हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स लिखे। यू नो, हरमाइनी, रॉन, डम्बलडोर, ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने जर्नी के टाइम पे, ट्रैवल जब कर रही थी ट्रेन में, तब लिखे। और उनके पास जितने भी, और नीचे वो ट्रेन में जो भी छोटे छोटे कागज के टुकड़े या कोई रफ पेपर पड़ा होगा, कोई नैपकिन पड़ी होगी, उनको उठाकर उसमें लिखना शुरू किया। बिकॉज शी नोस कि ये जो आइडियाज मुझे आ रहे हैं, अगर मैंने अभी इसे नहीं लिखा तो वॉश आउट हो जाएंगे, बाद में याद भी नहीं आएंगे। और रिजल्ट आपको पता है कि हैरी पॉटर फिर कितनी फेमस है। और जेके रॉलिंग का एक और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कि जब उनकी हैरी पॉटर फर्स्ट जो नॉवेल थी वो कंप्लीट हुई, तो 12 पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट किया, 12 पब्लिशर्स। और यूरोप में इस तरह की मेंटालिटी थी कि कोई एक लेडी इस तरह की जो फिक्शन है, जो जिसमें जादू या मैजिक दिखाया गया है, तो ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता, ये लेडी को लिखना नहीं चाहिए। ये मेल या जो भी ऑथर होगा, कोई मेल पर्सन होगा, वो लिखा तो ठीक है, लेकिन ये लेडी लिख सकती है, नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो ऑलमोस्ट 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद जेके रॉलिंग्स ने कोशिश करती रही, जारी रही उनकी कोशिश। तो ब्लूम्सबरी नाम की एक पब्लिकेशन कंपनी है जिसने हैरी पॉटर का जो नॉवेल है वो एक्सेप्ट किया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। हमको पता है कि किस तरह से उन्होंने
7 अलग अलग बुक्स बनाई और उसके ऊपर मूवीज भी बनी और मूवीज भी बहुत फेमस हुई। आज भी हर बच्चा हैरी पॉटर सीरीज जरूर देखता है। तो ये एक स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना, ये एक एग्जाम्पल है ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। ये एक जो उनकी बुक है उसमें वो किस तरह से अपने कैरेक्टर्स और प्लॉट को डेवलप करती थी, किस तरह से वो नोट डाउन करती थी। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो रफ पेपर। यहाँ पे उसके पास कोई बड़ी ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं कंप्यूटर पे इस तरह से प्लॉट लिखूंगी और उस तरह से सेव करूंगी। नो, नथिंग। जस्ट एक पीस ऑफ पेपर लिया A4 साइज का और उस पे इन्होंने अपने थॉट्स में से क्या आइडियाज आ रहे हैं वो सारी चीजें इन्होंने लिखी। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आई हैव बीन शॉक जब मैंने ये पढ़ा J.K. रॉलिंग के बारे में या ब्रूस ली के बारे में, कि कैसे उन्होंने लिख लिख कर अपने लाइफ में चेंजेस लाए। राइट नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज द वेरी लेटेस्ट एग्जांपल। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही है। इसमें बियांका एंड्रेस्क्यू, शी इज द वेरी फेमस टेनिस प्लेयर एंड शी इज द वेरी यंगेस्ट, 19 years, 19 साल की उम्र में उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता। एंड अगेन हियर आल्सो शी शेयर्ड कि from the age of 15 she has started writing the journal in which she had wrote down कि किस तरह से मुझे ग्रैंड स्लैम जीतना है, और वो भी किसी एरे गैरे से नहीं, सेरेना विलियम्स से, जो कि टॉप मोस्ट प्लेयर है। और पूरी स्ट्रेटेजीज उसने अपने जर्नल में लिखी। ऑफ कोर्स she had practiced meditation also, visualization also, but writing is the most powerful tool which she had used to win। एक माइंड में हमें थॉट्स के लेवल पे अंदर डाल रहे हैं, एक कमांड हम अंदर डाल रहे हैं कि यस आई वांट टू अचीव दिस गोल। वो गोल क्या था कि टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल। और इतना ही नहीं कि जो हर साल फ्रॉम द एज ऑफ 15 उन्होंने क्या किया कि हर साल जब भी विंबलडन होता था तो उसमें जो प्राइज मनी होती थी, उस प्राइज मनी का एक फेक चेक लिख करके अपने जर्नल में रखती थी कि ये अमाउंट जितना भी मेरा होगा। उस टाइम पे उन्होंने $3.85 मिलियन का जो विनिंग अमाउंट है उनको मिला, तो वो भी उन्होंने अपने जर्नल में लिख के रखा था कि दिस इज द अमाउंट आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर विनिंग द टाइटल। So again this proves that journal writing is very important to us। हम अपने अपने journals में लिखना चाहिए what are our goals, हम करना क्या चाहते हैं, हमारे लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं। साथ में जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है कि आज के सेशन में होगा इमोशनल इंटेलिजेंस या सेल्फ अवेयरनेस, उसको भी कैसे हम लाए, हमारे अंदर जो इमोशनल कोटेंट है उसको किस तरह से पेपर पे लाए और कैसे अवेयरनेस के साथ हम सारी बातें हमारे जर्नल में लिखें। सो नेक्स्ट, ओपरा विनफ्री, इनका भी एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बचपन से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आते थे, राइट फ्रॉम हर फैमिली और फ्रेंड्स। जहाँ पे ये रहती थी वहाँ पे ब्लैक इन्हें कहा जाता है। और लेटेस्ट में आप सभी को पता होगा यूएस में अभी एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस वालों ने, एक जो पर्सन थे ब्लैक, उनकी डेथ हो गई गले के ऊपर नीज रखने की वजह से। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ओपरा विनफ्री, इनके भी साथ बहुत सारे टॉर्चर्स होते थे, बट फ्रॉम द एज ऑफ 13 शी हैड स्टार्टेड राइटिंग डायरी और अ जर्नल। उसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस लिखते जाती थी। जो भी प्रॉब्लम आता था, जैसे इमोशनल लेवल पर दुख हुआ या फ्रस्ट्रेशन आया, यू नो, या एंगर आया, गुस्सा आया खूब, या फिर कुछ अच्छा हुआ, तो उन्होंने सब लिखना शुरू कर दिया। तो उनका ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि ग्रैटिट्यूड पे लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। ग्रैटिट्यूड मीन्स धन्यवाद, धन्यवाद का भाव, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हम बोलते हैं कि जिस भी चीज से उन्हें अच्छा फायदा मिला या जो हेल्प मिली ओपरा को, तो उनके बारे में वो अपने डायरी में या जर्नल में लिखती दिख जाती थी। और उनका एक मोटो क्या था, What you focus on expands, यानी जिस चीज पर आप फोकस करोगे वो चीज आपके जीवन में आते जाएगी, आपके लाइफ में वो मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो ऑलवेज वी हैव टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स हमारे लाइफ में जो भी आ रही है। और ये अपने जर्नल में लिखते जाती थी और लिख लिख कर
इतना ज्यादा इनको फेम मिला, जिसमें कि ये हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और जो बाकी के लोग हैं, साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स, उन सभी के इंटरव्यूज इन्होंने लिए हैं। तो आई होप आप सभी को पता होगा ओपरा विनफ्री के बारे में। तो ये उनका एक जर्नल का एक सैंपल है जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है कि इस तरह वो लिखते थे। यानी जो भी आता है वो हमें लिखना है जर्नल पे। अपने आप को रोकना नहीं है कि ये मैं लिखूंगा या लिखूंगी और ये मैं नहीं लिखूंगा, राइट? तो वी विल सी कि क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरी एंड जर्नल? तो हर बार हम ये सुनते हैं कि डायरी मतलब ये डायरी में ऐसा ऐसा लिखना, आज दिन भर में हमने क्या किया, कल क्या करना, राइट? इट्स मेनली यूज्ड टू राइट आज की जो एक्टिविटीज थी, डेली एक्टिविटीज क्या है, आज हमारा दिन कैसे हमने गुजारा, स्पेंड किया, और कल क्या हमने करने वाले हैं। और वो भी जो टू डू लिस्ट होती है, जो भी प्लान होता है, अकॉर्डिंग टू ऑल दिस इट इज कॉल्ड डायरी राइटिंग। यू नो, ये सारी चीजें अगर हम लिखते हैं और करते हैं तो उसका मतलब है डायरी राइटिंग। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि डायरी इज अ फॉर्मल पैटर्न ऑफ डेली एंट्रीज। जो भी हम डेली एंट्रीज करते हैं उसका फॉर्मल पैटर्न है, ऑब्जर्वेशंस, एक्टिविटीज, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें। और एक्चुअली ये आउटवर्डली फोकस्ड है, यानी बाहर की जो दुनिया है उसमें जो भी एक्टिविटीज होती है, हमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, उन सभी चीजों को जब हम डायरी पे लिखेंगे तो उसे कहा जाता है इट्स अ डायरी राइटिंग। और बहुत फेमस है कि हाँ डायरी राइटिंग करना चाहिए, इट हेल्प्स ग्रोइंग। सो बट इट इज द लिमिटेड थिंग, यू नो, ये इतनी ही चीजें हम जब करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डायरी राइटिंग, नॉट अ जर्नल। जर्नल इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट क्या है जर्नल? नाउ कम्स टू दिस पर्सनल जर्नल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, इट कंटेन्स थॉट्स, जो भी विचार हमें आते हैं, जो भी फीलिंग्स हमें आती है, जो भी इमोशंस आते हैं। इमोशंस यानी क्या? कभी गुस्सा आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी तकलीफ हो रही है, कभी फ्रस्ट्रेशन है, कभी इरिटेशन है, कभी डलनेस है, कभी बोरिंग हो रहा है, मुझे बोर हो रहा है। तो ये सारे जो इमोशंस हैं वी कैन राइट इट डाउन, और जिसमें हम लिखेंगे दैट राइटिंग इज कॉल्ड जर्नलिंग। रिफ्लेक्शंस, जो भी हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमने ये किया, ये क्लैरिटी मिली, तो वो जब हम पेपर पे लिखेंगे तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शंस। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आई है, वो प्रॉब्लम्स को भी हम लिख सकते हैं जर्नल में। सेल्फ अश्योरेंसेस कि हम अपने आप को क्या बता रहे हैं कि ये मेरे साथ होगा। एंड कैन जर्नल राइटिंग कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट वंस लाइफ। तो ओवरऑल जर्नलिंग में क्या है कि हमारे अंदर जो फीलिंग आ रही है, जो भी इमोशंस है, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। लॉट्स ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि if there are good feelings and good emotions, we share with our close ones, family members, friends, colleagues, इन सभी के साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन हमारे साथ अगर कुछ दुख में हुआ, कुछ बुरा हुआ, किसी ने कुछ ऐसा थर्ड पर्सन टॉक बोल दिया, तो वी डोंट शेयर। और ये अंदर ही अंदर रह रह के वो बहुत ज्यादा एक बलून जैसे फूलता है, वैसे ये बड़ा बड़ा होते जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बर्स्ट हो जाता है, लाइक एन एटम बॉम्ब। और वो बर्स्ट किस तरह से होता है? कोई भी डिजीज आ जाता है हमारे शरीर में और हम बोलते हैं कि ये मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, ना स्मोकिंग की, ना ड्रिंकिंग की, ना नॉनवेज खाया, फिर भी मुझे ये तकलीफ क्यों हुई? दैट इज बिकॉज ऑफ आवर इमोशंस। इमोशंस को हम अपने अंदर रोक के रखते हैं, हम उसको रिलीज नहीं कर पाते। So the best option to release our emotions is by writing it down. Okay, let's see the next point. Now what is journal? Journal can include random thoughts. जो भी आपके random thoughts आते हैं उसे हमें include करना है। लिस्ट हम बना सकते हैं, जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी हंचिंग होती है। फिर पिक्चर्स, अलग अलग तरह के जो पिक्चर्स हैं, आई विल शेयर कि किस तरह से हम पिक्चर्स यूज करते हैं थोड़ी देर में। फिर डूडलिंग होती है। डूडल्स मतलब कि हम रैंडमली छोटी छोटी ड्राइंग करते हैं व्हेनेवर वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग समथिंग। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं किसी बारे में और किसी तरफ हम एक देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं। जैसे हमारे सामने अगर पेपर वेट रखा हुआ है या फ्लावर पॉट रखा हुआ है, तो उसकी तरफ देख रहे हैं हम और कुछ सोच रहे हैं। और सोचते सोचते पेपर और पेन अगर हमारे हाथ में है तो हम
वहां पे डूडलिंग करते हैं, एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे, स्टार बनाते जाएंगे, है ना, कुछ डिजाइन्स। तो दीज शॉर्ट डिजाइन्स आर कॉल्ड डूडल्स, तो वो हम बनाते हैं। तो ये हम जर्नल में इंक्लूड कर सकते हैं। मेमोरीज, तो हमारे लाइफ में जो भी हैप्पी मेमोरीज थी उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं जर्नल में। फिर सॉन्ग लिरिक्स, जो भी सॉन्ग्स हमें अच्छे लगते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, जिससे हमें एक एनर्जी मिलती है, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड दोज सॉन्ग्स। और एनीथिंग एल्स विच कम्स टू आवर माइंड, यानी जो भी आ रहा है अदर देन डायरी। डायरी में हम क्या लिखते हैं, हमने समझा है ना कि आज मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, टू डू लिस्ट, क्या एक्सपीरियंस आया या ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, छोटा छोटा, that comes under diary writing. But journal में it's a very vast scope, जिसमें हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डायरी राइटिंग इज अ डेली एक्टिविटी, but one can write in a journal whenever there is a desire to write about significant experiences. So what कि daily writing जब हम करते हैं that comes under diary writing, जो daily होती है एक्टिविटीज। लेकिन जर्नल जब भी आपको थॉट आए, जब भी आपको इमोशंस आए, जब भी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, जब भी आप अपनी फीलिंग्स को रिलीज करना हो, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो राइटिंग इज द बेस्ट वे टू शेयर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। And it's an inward journey. A journal is an inward journey, a record of internal life written consistently over a period of time. तो जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे, जो भी हमारे इंटरनल एक्सपीरियंसेस है, जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारे चीजें जो एक्सप्रेस करना है, वो सब जब हम जर्नल में लिखेंगे, सो दैट इज कॉल्ड जर्नल राइटिंग। जर्नल इज अ प्लेस वेयर यू कैन कम्यून विथ रेयरली एक्सप्लोर्ड पार्ट्स ऑफ योरसेल्फ and where those parts can answer back. तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जर्नल में कि जब हम लिखते हैं तो लिखते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हमारे अंदर से ही कुछ आंसर्स आ गए, हमारे क्वेश्चंस। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि ये कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आता है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों होता है, हर बार व्हाई मी, ओनली मी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अंदर जनरेट होते हैं। तो हमें व्हाट वी हैव टू डू, वो हमें लिखते जाना। और जैसे लिखेंगे और उसके डिटेल्स में जब हम जाएंगे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके अंदर से ही when we connect to our inner consciousness, या हम बोल सकते हैं सबकॉन्शियस के साथ जब हमारा कनेक्शन होता है, तो सॉल्यूशन कम्स। बहुत से सॉल्यूशंस बहुत से फेमस पर्सनालिटीज को मिला है थ्रू जर्नल राइटिंग। Now here's a very सिंपल एंड बेसिक एग्जाम्पल जो आप सभी के साथ शेयर करना है कि डायरी राइटिंग क्या है और जर्नल राइटिंग क्या है। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फैशन एंड स्टाइल। तो जब भी हम कुछ एक फैशन स्टेटमेंट रखते हैं या कुछ ऐसा पहनते हैं, जैसे हमने एक न्यू स्टाइल का पैंट पहना या जैकेट पहना, या फीमेल्स है तो जो एक्सेसरीज होते हैं, है ना, नेकलेस, गॉगल्स और इस तरह की कुछ फैशनेबल चीजें जब हम पहनते हैं, तो उसके बारे में अगर हमें लिखना है कि ओके दीज आर द थिंग्स आई वोर टुडे, ये हम लिखेंगे डायरी में, राइट। कि डायरी में आप लिख सकते हैं कि मैंने ये पहना, आज इस तरह से पहना, आज पहना है तो अब अगले महीने में पहनूंगा। ओके, यानी कि वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, हमको याद रहेगा कि हमने कब पिछले बार पहना। बट जर्नल में क्या लिखेंगे, मैगजीन क्लिपिंग्स एंड पिक्चर्स ऑफ द डिजाइनर हैंडबैग्स यू वांट टू ओन। तो जर्नल एक आपका एक बहुत बड़ा पेज है, जो मैजिक पेज बोल सकते हैं कि व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में, तो यू कैन राइट इट डाउन इन द जर्नल। और उसमें क्लिपिंग्स भी, जैसे पिक्चर्स है, जैसे आपका कोई डिजाइनर हैंडबैग है या जो भी लेटेस्ट फैशन एक्सेसरीज है जो आपको चाहिए, जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, रेबैन का गॉगल हो गया, व्हाटएवर जो भी है, उसका आप प्रिंट आउट निकालिए डाउनलोड करके इमेज, उसको कट करिए और अपने जर्नल में स्टिक कर दीजिए और आप लिखिए कि दिस इज द थिंग विच आई वांट इन माय लाइफ, या आने वाले 1 साल के अंदर 6 मंथ्स के अंदर आई वांट दिस थिंग्स। तो वो जो चीजें हैं यू विल राइट इट इन जर्नल। देन द सेकंड एग्जांपल इज वर्क एंड करियर। तो डायरी में क्या लिखेंगे, अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, कौन से टास्क कंप्लीट हुए, कौन से अभी इनकम्प्लीट है, कौन सा पेंडिंग वर्क है। So these are all the things which we write generally in our diary. लेकिन जर्नल में क्या लिखेंगे, अ बिग पिक्चर, करियर गोल,
आपके ड्रीम्स क्या है, आपका एस्पिरेशन क्या है, आप बनना क्या चाहते हो। और नॉर्मली इट इज नॉट लाइक कि मुझे ये बनना है तो वो लिखना है, बट ओवरऑल जो गोल्स है, व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस लाइफ, जो हमें लाइफ मिली है, आपने उसको क्या करना है, क्या बनना है। लाइक सचिन तेंदुलकर, उसका एक रोल था, एक गोल था कि आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, और क्रिकेट के अलावा उसे कुछ दिखता नहीं था। तो whenever he used to write in his journal, he always write about cricket, cricket and cricket. सुबह नाश्ते से लेकर रात के सोने तक मैं क्या करूंगा जिससे कि मेरा क्रिकेट के प्रति जो नॉलेज है वो बढ़े। प्रैक्टिस में तो जाना ही है, प्रैक्टिकली तो करना ही है, बट मेंटल लेवल पर राइटिंग के माध्यम से, थ्रू द राइटिंग, जर्नल राइटिंग, हाउ कैन आई इंप्रूव इन माय क्रिकेट। तो वो तेंदुलकर उस तरह से लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैंने कोशिश की है शेयर करने की। डायरी राइटिंग इज द टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। नाउ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन इज वी आर एक्सप्लोरिंग द जर्नलिंग कैसे करना, और उसमें ये अलग अलग पॉइंट्स आएंगे कि थ्रू यूजिंग द राइटिंग इन जर्नल हाउ वी कैन एक्सप्लोर ourselves. So you can see in the screen, these are some samples जिसमें आपको किस तरह से जर्नल लिखना है। Okay, colorful. You can use all various types of pens, sketch pens, crayons, stickers. Make your journal colorful. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ब्लैक पेन से लिखना शुरू किया तो पूरा जर्नल में आप ब्लैक पेन से ही लिखो या ब्लू पेन से लिखो। You have to make it colorful. जैसे हमारी लाइफ कलरफुल हम देखते हैं कि I have lots of happiness in my life, तो उसी तरह से हमारी जो जर्नल होगी it should be colorful. So these are some examples which I wanted to share with you कि इस तरह से हमें हमारी जर्नल में लिखना है। Okay. Now comes the self awareness. तो self awareness यहाँ पे क्या है? The ability to take an honest look at your life without attachment to it being right or wrong. एकदम सिंपल, हमें किसी भी तरह का अटैचमेंट नहीं रखना है और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। जो भी चीजें हम लिखेंगे जर्नल में, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट। अगर आपको आपके लाइफ में कुछ दुख आ रहा है, कुछ तकलीफ आ रही है, नॉर्मली निगेटिव थिंग्स को या निगेटिव जो भी सिचुएशंस आती है हमारे लाइफ में, हमारा फोकस उस पर जल्दी चला जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव चीजें आती है हमारे लाइफ में तो हम उसको एंजॉय तो करते हैं लेकिन भूल भी जल्दी जाते हैं। So what we have to do is we have to focus both the points, negative as well as positive. तो जो भी अंदर thoughts के level पर आता है, we have to write it down in our journal. It is the foundation of emotional intelligence, EQ. EQ यहाँ पर इमोशनल कोटेंट हम सभी को पता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो वी शुड बी सेल्फ अवेयर। और सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? थ्रू राइटिंग द जर्नल रेगुलरली, डेली। आपको जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी फीलिंग लेवल पर आता है, इमोशंस में आता है, आपको सभी चीजें आपको अपने जर्नल में लिखनी है। कैसे लिखनी है? नाउ लेट्स फोकस ऑन दैट। नाउ वन थिंग आई वांट टू शेयर कि मुझे बहुत ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत वास्ट है और लिमिटेड टाइम में मुझे बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप सभी के साथ शेयर करना है, सो दैट वी कैन आल्सो स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स। तो थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा सो दैट वी कैन कवर लॉट्स ऑफ थिंग्स टुडे। ओके, तो नाउ वी विल सी कि किस तरह से हम सेल्फ अवेयरनेस हमारा बढ़ा सकते हैं थ्रू राइटिंग। रिटन एक्सरसाइजेस क्या क्या है वो आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है जिससे मैंने शुरू किया आज का सेशन, दैट इज जर्नल राइटिंग। हम सभी को जर्नल राइटिंग स्टार्ट करना है। अगर आप में से ऐसे हैं जो ऑलरेडी लिखते हैं तो इट इज द वेरी गुड हैबिट, वी हैव टू कंटिन्यू इट। और हम में से जिन्होंने अभी तक नहीं लिखना शुरू किया है, वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग। तो क्वेश्चंस आएंगे कि क्या लिखना है ना। तो डायरी का हमने देख लिया, जो दिन भर की एक्टिविटीज है, दैट इज द सेपरेट पार्ट। नाउ वी विल फोकस ऑन जर्नल राइटिंग। सेकेंड क्या है? एक्सरसाइज। द इम्पोर्टेंट थिंग इज आस्क फॉर फीडबैक। हमारे जो नियर एंड डियर वंस है, आप उनसे फीडबैक्स लीजिए। जो भी हमारा रोल है, जैसे हमारे फ्रेंड्स है या कलीग्स है या फैमिली मेंबर्स है या बहुत ही
ऐसे 2-3 फ्रेंड्स होते हैं ना जो एकदम नजदीक के हैं, क्लोज फ्रेंड्स, जिनसे हम सब चीजें शेयर कर सकते हैं. वी आस्क ऑल दोज पीपल, पूछिए, हम उनसे पूछेंगे कि मेरे बारे में बताओ, मेरा फीडबैक दो आप, कि मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, मैं किस तरह से बात करता हूँ, बहुत जोर से तो आवाज नहीं निकलती है या धीरे से निकलती है, मेरे थॉट जो आते हैं या मेरा जो पैटर्न है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं. तो ओवरऑल आस्क देम अबाउट योरसेल्फ, फीडबैक दो मुझे कि मेरा प्रेजेंटेशन किस तरह से था, परफॉर्मेंस किस तरह से था, बॉडी लैंग्वेज मेरी किस तरह की होती है, और कभी कभी मैं जब गुस्सा आता है तो मेरे थ्रू जो बातें निकलती है वो क्या होती है, सो दैट कि हम वी विल इम्प्रूव ऑल दोज थिंग्स इन आवर लाइफ. तो वो जो भी फीडबैक्स आपको मिलेंगे, जिस भी तरह के फीडबैक्स आपको मिलते हैं, आपको उसे लिखना है इन योर जर्नल. मेक अ जर्नल एंड स्टार्ट राइटिंग द फीडबैक्स गिवन बाय योर फ्रेंड्स एंड नियर वंस. जो भी कलीग्स है, एकदम क्लोज फ्रेंड्स है, उनसे हम लेंगे. हर एक से तो हम पूछेंगे नहीं कि भाई मुझे फीडबैक दो, बट फ्रॉम द सिलेक्टेड पीपल जिनको हमें लगता है ऐसा कि इनसे पूछना कंफर्टेबल है, इनसे पूछकर मुझे क्लैरिटी मिल सकती है. तो ऐसे फीडबैक्स आपको लेना है और उसे अपने जर्नल में एंट्रीज करते जाना है रेगुलर. आज नहीं कल नहीं, यू हैव टू रेगुलरली इम्प्रूव आवरसेल्फ. यू नो, हमको अपने आप में इम्प्रूव लाना है, ग्रोथ लानी है हमारे अंदर. तो feedback is the number one topic. Then third is recognize your strengths and weaknesses. तो हमारे strengths क्या है, weaknesses क्या है, हम हमेशा thought के level पर ये समझते हैं. We always think in our thoughts. Mind में सोचते रहते, हाँ ये मेरा best है, इसमें मुझे improve करना होगा. No, what we have to do is write it down on paper. हमें लिखना है मेरी strengths क्या क्या है और किस तरह से हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्ट्रेंथ्स. ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. यू हैव टू रेगुलरली राइटिंग डाउन इन योर जर्नल. और वीकनेसेस भी क्या है, क्योंकि वीकनेसेस हमको पता चलेंगे तभी तो हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे. तो इस तरह से वी कैन इंक्रीज आवर सेल्फ अवेयरनेस. नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलॉक थॉट्स एंड इमोशंस. जिससे मैंने स्टार्ट किया था आज का सेशन कि जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, उसको हमें लिखना शुरू करना है. और कई बार ऐसा होता है हमारे डेली लाइफ में, पर्सनल लाइफ एंड जो व्हाट टू से ऑफिस है, बिजनेस है, या दूसरों के लिए, यानी हमारे फैमिली के बाहर जब हम निकलते हैं, फिर हमारे फ्रेंड से मिलते हैं, कलीग से मिलते हैं, रिलेटिव्स से मिलते हैं, इन सभी के साथ जो हमारी कम्युनिकेशन चलता है, जो भी हमारा कन्वर्सेशन चलता है, उसमें हम एक अलग तरह से सोचते हैं. और जब फैमिली में रहते हैं तब अलग तरह से सोचते हैं, और जब हम खुद के साथ रहते हैं तब और अलग तरीके से सोचते हैं. तो 3 तरीके हैं जिसके थ्रू वी थिंक, और हमारे अंदर जो थॉट्स आते हैं वो 3 अलग अलग तरीके से आते हैं. आउटसाइड वर्ल्ड, देन इन फैमिली, एंड देन विद इन मी, या मेरे अंदर. तो तीनों लेवल पर हमें जो भी थॉट्स आते हैं वो हमें लिखना है. जैसे किसी ने हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, 3rd पर्सन टॉक दिया, या फॉर एग्जांपल किसी ने गलत शब्द हमारे बारे में बोले, हमें जब ये पता चलता है कि अच्छा उसने ऐसा किया, तो हमें थॉट्स में जाता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है कि मैं तो देख लूंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा. तो ये हमारा जो सेल्फ टॉक है ये चलते रहता है अंदर ही अंदर. तो व्हाट वी हैव टू डू, इसकी अंदर ही अंदर नहीं चलाना है, उसको पेपर पे लाना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए XYZ जो भी पर्सन होगा उसके लिए मुझे इस तरह के थॉट्स आए. फिर चाहे वो फ्रस्ट्रेशन वाले हो, एंगर वाले हो, या खुशी के हो, हैप्पीनेस वाले हो, वी हैव टू राइट ऑल द थिंग्स ऑन पेपर. जब पेपर पे लिखेंगे तभी हमको क्लैरिटी मिलेगी कि ये थॉट्स मेरे अंदर चल रहे थे. अदरवाइज पता नहीं चल पाएगा कि कब पहला थॉट आया, फिर वो चला गया, कब दूसरा थॉट आया, फिर वो चला गया, और इस तरह से थॉट्स आते जाते हैं. नियर अबाउट 70,000 थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं. एक रिसर्च में ये पता किया गया कि एक आम इंसान के अंदर इतने सारे थॉट्स. तो उनमें से इंपॉर्टेंट थॉट क्या है पर्टिकुलर दिन, उस डे, क्या ऐसे फीलिंग्स लेवल पर आया, क्या इमोशंस एक्टिवेट हुए, जागरूक हुए, वो वी हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर.
और rather journal. तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे थोड़ा आगे चलकर. Then next point is personal manifesto. What you want to achieve in your life. आपका गोल क्या है, ओवरऑल जो गोल है, आप भले ही आपको पता है, आपके माइंड में आपको ये थॉट क्लियर है, अवेयर है आप, लेकिन वी हैव टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, जिससे कि और नए आइडियाज आएंगे. व्हेनेवर वी राइट ऑन अ पेपर, what we are doing is we are communicating with nature and subconscious mind. Subconscious mind, it's the most powerful mind given by nature, or we can say by God. एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक टुडे. बट जैसे जैसे हम लिखना शुरू करते हैं और शेयर करते जाते हैं हमारे पेपर पे, जर्नल पे, तो हमें उसके रिजल्ट्स वर्ड्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा ही मिलते हैं. तो जब भी आप लिखेंगे, व्हाट यू हैव टू डू इज राइट इट ऑन इन फ्लो. आप जब लिखना शुरू करो, फ्लो में लिखते जाना है. तो जैसे 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 आप लिखते रहेंगे, वैसे वैसे आपको सॉल्यूशंस भी अंदर से आते जाएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ईच एंड एवरीथिंग. तो पर्सनल मैनिफेस्टो मींस कि व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, जो भी आपका गोल है, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, हर तरह के गोल्स को आपको पेपर पे लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर योर सेल्फ टॉक. ओके, दिस इज ऑल्सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि आपके अंदर जो बड़बड़ चल रही है, बड़बड़ दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव थॉट्स की एंड नेगेटिव थॉट्स की. बेसिकली व्हाट आवर माइंड अट्रैक्ट्स इज नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के ऊपर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है बिलीव कर लेता है जल्दी. कुछ भी नेगेटिव हुआ तो हाँ, ये मेरे साथ पॉसिबल है, और अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो हम डाउट लाते हैं कि वाकई में मेरे साथ अच्छा हुआ. हम चेक करते हैं एक बार दो बार, हम यानी हमारा माइंड वो चेक करता है कि पॉजिटिव हुआ क्या. लेकिन नेगेटिव होता है तो हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, ये मेरे साथ ही होता है, या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इनके साथ तो बहुत अच्छा होता है, बट मेरे साथ देखो मैं यहीं पे हूँ, इसी लेवल पर हूँ, और बहुत सारे इस तरह के थॉट्स. तो सेल्फ टॉक हमारा क्या चल रहा है, किस तरह के सेल्फ टॉक हमारे अंदर चल रहे हैं. जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ व्हाटएवर द वर्क वी आर डूइंग, उस समय देखिए कि हमारा सेल्फ टॉक क्या है. जब कोई एक सिचुएशन आई, कुछ इवेंट हुई, कोई एक घटना हुई, उसके बाद हमारा माइंड किस तरह से बड़बड़ करता है, टॉक करता ही है. और अभी जो लेटेस्ट सिचुएशंस चल रही है, ईयर 2020 में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, इस पे तो बहुत ज्यादा कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अभी क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं होता था, है ना. तो वी हैव टू मॉनिटर आवर सेल्फ टॉक, और जो नेगेटिव सेल्फ टॉक से उसको भी लिखना है कि इस तरह का सेल्फ टॉक मेरे अंदर आ रहा है. तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. एनालाइज योर डिसीजन, कि आपका जो डिसीजन है, आप किस तरह के डिसीजंस ले रहे हो. तो डिसीजंस हम लेते हैं, दैट मींस आवर कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड इज द वन मेन थिंग और मेन माइंड पार्ट जो हमारे लिए डिसीजंस लेता है. तो वी हैव टू राइट आवर डिसीजंस आल्सो इन आवर जर्नल, सो दैट कि हमें क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे धीरे धीरे करके मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं. पहले मैं किस तरह के डिसीजंस लेता था, और अब धीरे धीरे करके किस तरह से डिसीजंस मैं ले रहा हूँ. तो वी हैव टू राइट आवर डिसीजंस आल्सो, कि कब मैंने किस तरह का डिसीजन लिया. और ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा डिसीजन या बहुत बड़ा डिसीजन. लाइफ में जिस भी लेवल पर जो भी हम छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, जैसे आज हमने थॉट में आया कि हमने डिसाइड किया कि चलो आज मैं एक इवनिंग में वॉक करूंगा, तो इट्स अ वेरी स्मॉल डिसीजन. तो ये करने से क्या होगा, तो देन व्हाट you have to write it down each thing in detail in your journal. Then last one is the create a bucket list. हमको bucket list भी बनाना है. हम लोगों ने, हम में से बहुत से लोगों ने ऐसा बनाया होगा bucket list, but again जो हम journal बनाएंगे उसमें bucket list का भी एक section रखना है, जिसमें what you want to achieve, where you want to go, क्या क्या चीजें explore करना चाहते हैं, just you have to write it down one by one. So these are the things. अगर हमने ये सारी चीजें रेगुलर कंटिन्यूटी में रखी, तो हम देखेंगे कि हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बढ़ते जाएगा. और इसके साथ और चीजें हैं, जैसे आपके गोल्स तो हमने लिखे ही हैं. आपका जो ग्रेटिट्यूड है, एक सेक्शन आप ग्रेटिट्यूड का भी बना सकते हैं. इसमें जस्ट गिव थैंक्स टू ईच पर्सन जिसके साथ भी हमारी बात हुई. जो भी पर्सन कांटेक्ट में आया, उनको हमें थैंक यू बोलना है. जो भी सिचुएशन
हम जिस सिचुएशन से गए और हमको पॉजिटिव फीलिंग आई या पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज गिव द थैंक यू टू दैट पर्सन और दैट सिचुएशन. तो थैंक यू तो हम फीलिंग लेवल पर इमोशन पे बोलते ही है मन में, बट व्हाट वी हैव टू डू इज राइट इट डाउन. तो इस तरह से जितना ज्यादा हम लिखते जाएंगे तो हमारा सेल्फ अवेयरनेस. ओके, खत्म થઈ ગયું સેશન. Now next important point comes here, emotional intelligence. जिस तरह से हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस जितना ज्यादा हम लिखते जाएगा सेल्फ अवेयरनेस बढ़ते जाएगा. ऑफ कोर्स थॉट्स के लेवल पर भी हमें करना है, लेकिन जैसे जैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ते जाएगा हमारा इमोशनल पोटेंट भी बढ़ते जाएगा. इमोशनल इंटेलिजेंस इज व्हाट इट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस own emotions and control them to effectively solve the variety of life problems. So you can see in the screen कि these are the different things which we have to focus daily. यानी हमारे जो decisions है, जो decision making होता है उसमें improvement लाना जरूरी है. तो वो emotional intelligence के थ्रू हो सकता है. Reduced staff एक point इस तरह से हो सकता है कि अभी जो कोरोना का चल रहा है और उसमें स्टाफ कम हो गया और उसमें हमें किस तरह से प्रेजेंटेशन हमारा देना है उसके ऊपर भी हमारा थॉट प्रोसेस चलता है. तो दैट आल्सो वी कैन राइट इट डाउन इन द जर्नल. फिर इंक्रीज्ड पर्सनल वेलबींग. तो पर्सनल वेलबींग के लिए तो हमने बिल्कुल यूज करना है सेल्फ ग्रोथ के लिए. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन पेपर. जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे और जैसे जैसे उसके ऊपर काम करते जाएंगे ये क्वालिटी भी हमारी इंप्रूव होगी. देन इंक्रीज लीडरशिप एबिलिटी, इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस, या जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा बढ़ते जाता है. और यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि सुशांत राजपूत का जो हमने देखा एग्जाम्पल कि किस तरह से उन्होंने सुसाइड किया और बहुत सारे न्यूज चैनल से बताया जा रहा है कि वो इतने अच्छे थे एक्टर, इतने इंटेलिजेंट थे और इतनी सारी चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया और वो फिल्म्स भी अच्छी मिल रही थी और कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनकी अर्निंग भी बहुत बढ़िया थी. फिर उन्होंने इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों लिया? तो द बेसिक थिंग, और उन्होंने ये भी शेयर किया है, आई हैव जस्ट विजिटेड हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि जर्नलिंग भी वो करते थे, मेडिटेशन भी वो करते थे, क्योंकि जब से उन्होंने काउंसलिंग लेना शुरू किया तो उसमें वहां पर कोचेस ने बताया कि आप भी मेडिटेशन भी करो. बट ऐसा क्या हुआ जो कि उन्होंने इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप लिया? तो उसका जो मेन रीजन था वो यही था कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाए. अगर वो शेयर कर पाते कि मुझे इसी तरह से प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी इमोशन के लेवल पर उन्होंने अपना जो एक बड़ा होते जा रहा था उसको उन्होंने किसी के साथ शेयर कर देते तो वो बहुत बेस्ट हो जाता. और किसी के साथ करने से बेटर है कि आपको अगर लिखित में या राइटिंग में लेके आ जाते जो भी प्रॉब्लम्स है तो वो इस ड्रास्टिक स्टेप लेने से बच जाते थे. बिकॉज डिप्रेशन के पेशेंट्स जो होते हैं धीरे धीरे करके उनको हर जगह से ये प्रूफ मिलते जाता है कि देखो ये भी मेरे खिलाफ है, ये भी मेरे खिलाफ है, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे खिलाफ है, मेरे जो फ्रैटर्निटी के लोग हैं, बॉलीवुड के जो लोग हैं वो भी, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने भी मुझे काम देना बंद कर दिया है. तो इस तरह की फीलिंग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और जब बढ़ जाती है तो जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो इसी तरह से होता है कि एक बहुत ही बड़ा एक हम स्टेप ले लेते हैं और रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हुआ. तो ये सब चीजों से वो बच सकता था अगर उन्होंने मेडिटेशन प्रॉपरली किया. उन्होंने जो स्टडी की थी वो मेंटल लेवल पर तो बहुत अच्छी की थी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज जर्नलिंग. अगर उन्होंने प्रॉपर तरह से जर्नलिंग की होती, और जर्नलिंग में बेसिक चीज क्या है, हमारे जो इंटेंस इमोशंस है, इंटेंस इमोशंस मतलब जहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा दुख आया है, उन सभी इमोशंस को आपको लिखना है.
जितना ज्यादा हम लिखेंगे वो हमारे अंदर से रिलीज होगा, अदरवाइज हम उसको अंदर ही रखते जाएंगे, है ना। जैसे कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुआ और वो प्रॉब्लम के साथ मैं जी रहा हूँ, लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे हर बार जितना फोकस उस पर जा रहा है और वो ग्रो हो रहा है, और जिस पर्सन के वजह से प्रॉब्लम आया था वो पर्सन को तो पता भी नहीं। तो ये प्रॉब्लम अगर मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मैं रिलीज कर दूंगा वो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी इमोशन था। लेकिन व्हाट वी डू नॉर्मली कि हम शेयर नहीं करते, वी डोंट शेयर दोस प्रॉब्लम्स विद एनीवन, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर ये शेयर करूंगा तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी, एक ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम, ये सीक्रेट है मेरा, और ये सीक्रेट मैंने किसी के साथ शेयर कर दिया तो फिर वो मेरा मजाक बनाएगा, है ना। और इस वजह से हम वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। तो जर्नलिंग में क्या करना होता है कि इंस्टेड ऑफ शेयरिंग विथ एनीवन एल्स, शेयर विथ योर जर्नल। आप अपने नोटबुक में वो जो प्रॉब्लम था या वो जो भी इमोशन था उसे आप रिलीज कर दीजिए बाय राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो जितना डिटेल में हम लिखेंगे उतने जल्दी वो इमोशन से रिलीज हमें मिलेगा, मतलब अंदर नहीं रहेगा। और यही चीज मिसिंग थी सुशांत राजपूत के केस में, कि उन्होंने शेयर तो सबके साथ किया, और ये भी शेयर किया ना उन्होंने कि प्लीज देख लो यार मेरी मूवी। जैसे जो छिछोरे मूवी आई थी वो बहुत अच्छी मूवी है और बहुत कम लोगों ने उसे देखा है। तो जब भी कोई इंस्टा पर या ट्विटर पर उन्हें ट्वीट करते थे तो वो हर एक पर्सन से पर्सनली रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज गो एंड वॉच माय मूवी इन थिएटर। तो ऐसा करने की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि जो भी अंदर है वो शेयर नहीं कर पाया उन्होंने। किसी और पर्सन के साथ शेयर करते तो इट वाज वेल एंड गुड, बट अगर वो जर्नल में भी शेयर करते तो इस प्रॉब्लम से निकल पाते। क्योंकि हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम शेयर नहीं करना चाहते लोगों के साथ, क्योंकि वो हमारा मजाक बना सकते हैं या वो पॉइंट को लेकर हमें फ्यूचर में और कुछ बोल सकते हैं। तो इट इज द बेस्ट थिंग टू राइट इट डाउन इन आवर जर्नल। तो जब भी हम लिखें तो सीक्रेट कोड्स में हम लिख सकते हैं, सिंबल्स में लिख सकते हैं, अगर हम डिटेल में ना लिखना चाहें, है ना, कि कोई दूसरा पर्सन, फैमिली मेंबर या हमारा फ्रेंड या रिलेटिव उसे पढ़े ना, तो एक सीक्रेट कोड में भी हम लिख सकते हैं उसे सिंबल्स के तौर पर, या ABCD अल्फाबेट्स को 1 2 3 नंबरिंग दे दिया, और जैसे अजय नाम है तो A फॉर 1, J फॉर जो भी आएगा वो, और उस तरह से उसके नाम के जगह पे कुछ नंबर रहेगा। वो थोड़ा सा हम सीख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे अंदर के जो भी इमोशंस है उसको रिलीज करें। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि हम रिलीज करते जा रहे हैं एंड थ्रू राइटिंग उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे वही तो हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इमोशनल कोटेंट बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हमें आते हैं इससे हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, बट व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन राइटिंग इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। क्या चाहिए हमें लाइफ में, लोगों के साथ हमारा रिलेशंस कैसा हो, हमारा बिहेवियर कैसा हो, लोगों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा हो, जस्ट राइट इट डाउन। और देखेंगे जैसे जैसे हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी वैसे मिलना शुरू हो जाएंगे कि जो निगेटिव थिंकर्स थे हमारे आजू बाजू में, जो निगेटिव हमेशा सोचते थे और हमें भी वो निगेटिव थिंकिंग के लिए मोटिवेट करते थे, धीरे धीरे करके हमारे लाइफ से वो निकलते जाएंगे और हमारा जो सर्कल है वो पॉजिटिव थिंकर्स से बढ़ता जाएगा। वी कनेक्ट विद पॉजिटिव पीपल्स इन आवर लाइफ। तो क्या करना है, बस वी हैव टू राइट इट डाउन। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज और आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से हमें हमारे इमोशंस को एक्सप्लोर करना है, इमोशंस को लिखना है। तो आई होप आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। राइट अ सिचुएशन अबाउट विच यू स्टिल हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ओके, तो जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई सिचुएशन आता है, कोई एक ऐसा इवेंट होता है, जिस घटना होती है जिसमें कि हमारे अंदर फीलिंग लेवल पर आता है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ मेरे साथ, और हम इसे शब्दों में नहीं बोलते। वी ऑलवेज थिंक्स इन आवर माइंड, सेल्फ टॉक चलते रहता है, वो बड़बड़ जो अंदर ही है मन के अंदर वो चलते रहती है। और वो फिर फीलिंग, वो इवेंट जो है किसी भी तरह का हो सकता है, हैप्पीनेस वाला भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन वाला भी हो सकता है,
इरिटेशन वाला, दुख वाला, बहुत सैड फील कर रहे हैं हम, ऐसा भी हो सकता है, या फिर डल बोर लग रहा है, वो भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का सिचुएशन आएगा तो व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट वी हैव टू राइट डाउन दैट डिटेल, पूरा डिटेल में हमें वो सिचुएशन जो भी आई थी, जो भी घटना हुई, उसे हमें लिखना है। और उसमें जो भी आपको फीलिंग लेवल पर आया कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला और मुझे बुरा लगा, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इट डाउन, ऑल दोस थॉट्स जो हमारे माइंड में चल रहे हैं। तो लिखना है, पहला स्टेप है, लिखते जाना है, वो पूरा डिटेल में आपको लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, नाउ यू कैन प्रैक्टिस विद बोथ पॉजिटिव फीलिंग्स एंड नेगेटिव फीलिंग्स। ये भी मैंने आप सभी को बताया, शेयर किया कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फीलिंग्स को ही लिखना है, बट वी हैव टू राइट ऑल पॉजिटिव फीलिंग्स ऑल्सो, पॉजिटिव इमोशंस ऑल्सो। अब अगर हम जब नेगेटिव फीलिंग लिखते हैं तो हमारे सामने पेपर पे रहेगा, तो जर्नल राइटिंग इज टू whom, किसके लिए है, फॉर आवर आईज। जब हम आंखों से देखते हैं तो हमें उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है, ओके ये थॉट्स मेरे अंदर आए हैं क्या, ये इमोशंस मेरे अंदर आया है क्या, ओके चलिए इसके ऊपर हम काम करते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, जो भी फीलिंग्स आए पॉजिटिव नेगेटिव, यू हैव टू राइट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द सिचुएशन यू वांट टू प्रोसेस, सिट विथ इट फॉर अ सेकंड। अब जैसे हमने लिख दिया कि ये प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आया, या जो भी अच्छी हैपनिंग हुई, जो भी अच्छा हैप्पीनेस वाला फीलिंग आया, इवेंट हुआ, उन सभी को लिखेंगे और उसके साथ क्या क्या फीलिंग्स आ रही है, एक के बाद एक पॉइंट वाइज हमको लिखना है। जस्ट लिखना है, नथिंग एल्स कि ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस, ऐसा कुछ नहीं। जो फीलिंग्स जो भी आई वो हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब समर सीजन में घर के अंदर बैठे और लाइट चले जाती है तो किस तरह से हमें गर्मी का फीलिंग होता है, स्वेट आ रहा है, पसीना है, फैन काम नहीं कर रहा, वी वांट कूलर और एसी। और जैसे ही ये कूलर या एसी स्टार्ट होता है तो कैसी फीलिंग आ जाती है, वाह कितना अच्छा कूल लग रहा है। तो उसी तरह से हमारे माइंड में इमोशंस के साथ भी चलता है कि कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आती है तो हम उसके लिए बहुत चिंता करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही उसका सॉल्यूशन मिलता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो बाय राइटिंग इट डाउन, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज द सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम लिखकर आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस भी मिलते जाएंगे इन फ्यूचर। तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में मिलेगा। इसलिए फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिलीज ऑल दोज इमोशंस फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर माइंड। तो उसके लिए हमें लिखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, take out your journal and identify the emotions you are experiencing. It doesn't need to be limited to one emotion. तो जर्नल में जैसे लिख दिए और कुछ समय बाद फिर हम उसे पढ़ सकते हैं कि देखो ये इस तरह का इमोशंस मुझे आया था, और ऑटोमेटिकली अंदर से थॉट्स के लेवल पर हमें कम्युनिकेशन होगा बाय इनर कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, कि इस पर आप इस तरह से रिएक्ट कर सकते थे या इस तरह से आप सॉल्यूशन दे सकते थे। तो वो सारी चीजें ऑन पेपर लिखते लिखते आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ओके, तो इसीलिए हमें ये इमोशंस, जो इंटेंस इमोशंस है, हमें उसे लिखते जाना है, और उसकी चिंता नहीं करनी है कि भाई ये लिख दिया, सीक्रेट चीज अंदर ही जो चल रही थी वो लिख दिया और किसी ने देख लिया, तो वो उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको अंदर से निकालना है, और निकालना है तो उसे आप पेपर पे लिख सकते हैं। और समटाइम्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं पार्टिसिपेंट्स कि निगेटिव इमोशंस तो है, लेकिन मैं उसे याद नहीं करना चाहता या याद नहीं करना चाहती, बिकॉज बार बार जब हम पढ़ेंगे तो वापस से उस फीलिंग में जाएंगे, उस निगेटिव इमोशन में जाएंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, ये जो निगेटिव इमोशन आया उसको आपको जर्नल में नहीं लिखना है, एक सेपरेट रफ पेपर पे या A4 साइज का जो शीट होता है उस पे आप लिखिए, और जो भी अंदर से आ रहा है निगेटिव इमोशंस उसको आप लिखकर पढ़ लीजिए पूरा कि ये निगेटिव इमोशंस मुझे आया था, और फिर उसको फाड़ना है, क्लियर इट आउट, और फिर उसके बाद उसको जलाकर फ्लश आउट कर देना है। और जब आप ये एक्टिविटी करें निगेटिव इमोशन के लिए, तो हमें क्या करना है, माइंड में इस तरह का थॉट रखना है कि ये जो नेगेटिव इमोशन था, या जो निगेटिव थॉट्स थे, या जो निगेटिव बिलीफ सिस्टम था,
वो मेरे लाइफ से निकल रहा है। व्हाई? बिकॉज ये जल रहा है, बर्न हम कर रहे हैं, जला रहे हैं उसको और फ्लश आउट कर रहे हैं। तो फ्लश होता है तो वो पानी से निकल जाता है ना। तो उसी तरह से हमें माइंड में फीलिंग लेवल पर ये सोच रखना है कि ये जो निगेटिव थॉट, निगेटिव बिलीफ सिस्टम था मेरे अंदर से निकल गया। तो इस तरह से हमें एटलीस्ट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट इट डाउन। और पॉजिटिव इमोशंस ऑफ कोर्स वो हम जर्नल में लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने से क्या होगा कि हमें उस वापस से उस पॉजिटिव इमोशन में जाएंगे और फीलिंग गुड फैक्टर हमारे अंदर आएगा और वो मोटिवेट करेगा कि इस तरह के जो सिचुएशंस हैं हमारे लाइफ में और बार बार आए। ओके, लास्ट पॉइंट इज read what you have written and as much as possible allow those emotions to come forth, sit with them, है ना। तो ये पॉइंट भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि लिखने के बाद उसे आपको पढ़ना है, पॉजिटिव इमोशंस जो भी आएंगे उसको पढ़ना है, फिर वो फीलिंग लेवल पर देखना है। सो दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ एक्सप्लोरिंग आवर इमोशंस। इमोशंस एक ऐसी चीज है जो हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग आएगी, हर एक के अंदर सेम इमोशंस आएंगे ऐसा नहीं है। देन वी हैव टू डील विद देम, और उस तरह के इमोशंस जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो ही हम रिलीज कर पाएंगे उसको, अदरवाइज वो एक डिप्रेशन का रीजन भी बनते जाएगा। वो सुशांत सिंह जैसे भी उन्होंने किया वैसे ड्रास्टिक स्टेप नहीं हमें लेना है, और कोई अगर दिखता है ऐसा डिप्रेशन में तो उसे हमको जरूर बताना है कि अपने रिलीज हमको करना है इमोशंस, अदरवाइज ये चीजें वापस से रिपीट होगी। और जो भी न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं ना उनके बारे में कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये तो हर जगह है। नेपोटिज्म जो हो रहा है इट इज इन ऑल फील्ड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में हो रहा है, हर एक फील्ड में है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो राइटर हो, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, ग्राफिक डिजाइनर्स हो, ईच एंड एवरी फील्ड, इवन प्रोग्रामर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, वहां पर भी होता है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। बड़े बड़े लोग चाहेंगे कि मेरे जो बच्चे हैं वही आगे एक्सप्लोर करें, बाहर का कोई आया हुआ पर्सन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि वो आगे बढ़े और मेरे बच्चे पीछे रह जाए। ओके, तो बॉलीवुड में भी वही हो रहा है। तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन कि वो नेपोटिज्म की वजह से उन लोगों ने इतना प्रेशराइज किया, इस वजह से इसका हुआ। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर यूट्यूब पर जाकर सुशांत सिंह राजपूत के कुछ इंटरव्यूज देखिए, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितना इंटेलिजेंट पर्सन वो थे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम कि वो अपनी अंदर की जो भड़ास है, जो भी अंदर, कभी कभी हम गुस्सा होते हैं तो ब्लास्ट कर देते हैं ना, चिल्लाते हैं खूब जोर से, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। लेकिन जब हमारी ही कोई गलती होती है और हमको खुद के ऊपर गुस्सा आता है तो हम खुद के ऊपर नहीं चिल्लाते, तो वो हम अंदर ही अंदर पकड़ के रखते हैं। So what we have to do is we have to release all those emotions, and the best way is by writing. अगर आप writing के through ये कर लेते हैं तो it is the bestest thing what I want to share today. So these are the points. आप इस तरह से journal writing कर सकते हैं। journal writing के कुछ और points है जो अब मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, बिकॉज की टाइम हमारे पास अब कम है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है, 1 hour इज कंप्लीटेड। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेता हूं। नाउ अंदर क्वेश्चन आएगा कि हम स्टार्ट कैसे करें, क्या क्या लिखे, किस तरह से जर्नल में लिखे। तो इट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। आपको तुरंत बिना सोचे क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, किसी भी तरह का रजिस्टर हो सकता है, नोटबुक हो सकती है, आइदर ओल्ड डायरी, या आप स्टेशनरी पे जाके नई डायरी ले लें, A4 साइज की एक डायरी ले लीजिए 200-300 पेजेस की, और स्टार्ट राइटिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल ऑनलाइन। आप गूगल करिए जर्नल प्रॉम्प्ट्स, आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स दिखेंगे और आप उसमें से जो अच्छा लगे वो प्रॉम्प्ट्स आप सिलेक्ट करिए और स्टार्ट राइटिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। अगर आपने आज स्टार्ट नहीं किया तो, और ये थॉट आया अंदर कि मैं कल करता हूँ या आफ्टर 1 week आई विल स्टार्ट व्हेन आई विल बी फ्री, अभी थोड़ा बिजी हूँ, अभी नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट टुडे। देन सेकंड पॉइंट इज सेट अ कंसिस्टेंट टाइम इन अ क्वाइट प्लेस। यानी हमारे घर में जब हम हैं या हम ऑफिस में हैं या जहाँ पे भी हमारा फर्म है, बिजनेस है, कोई एक जगह सिलेक्ट कर ले और उसी जगह पर रेगुलर राइटिंग करना है। रैंडम जगह पे बैठ के हमें नहीं लिखना है। और टाइम का भी आप इम्पोर्टेंस है कि जैसे अगर आप
रात को जर्नलिंग करना चाहते हैं बिफोर स्लीपिंग, तो जैसे 10 PM आप करना चाहते हो तो 10 PM को ही डेली आपको करना है, या 10:30 PM, या मॉर्निंग में आप चाहते हो 15 मिनट्स 10 मिनट्स, तो मॉर्निंग का एक 8 AM या 8:30 AM, जो भी आपका टाइम होगा, या आफ्टरनून में आपको कोई टाइम मिलता है, तो सिलेक्ट एनी टाइम एंड बी कंसिस्टेंट विद दैट टाइम, यानी उसी टाइम पे हमें जर्नल लिखना है, और ऐसी जगह जहां पर हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं कर पाए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ना ही फैमिली मेंबर, ना ही ऑफिस में, ना ही बिजनेस में। एक सेपरेट क्वाइट प्लेस हो और वहां पे आराम से हमारे अंदर जो फ्लो आ रहा है थॉट्स में, उस फ्लो को हमें पेपर इट डाउन करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट, मेक अ कमिटमेंट टू स्टिक विथ इट, यानी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आज लिखा, कल नहीं लिखा, फिर एक हफ्ता नहीं लिखा, इससे हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमें व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कमिट किया है तो रेगुलर करना है। मिनिमम 5 days अ वीक हमें जर्नल में एंट्रीज करनी है। ओके, नेक्स्ट, डेट ईच एंट्री, दिस इज द ओनली रूल। आप किसी भी पेन से लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, बट डेट डालना बहुत जरूरी है। जब भी आप जर्नल में एंट्री करो तो उस दिन का जो डेट है वी हैव टू राइट इट डाउन। और जर्नल में कोई रूल नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी मराठी में ही लिखना है, यू कैन मिक्स एनी लैंग्वेज वट एवर यू विश फॉर। फिर उसके बाद लेटर्स कैपिटल ब्यूटीफुल आने चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ पेंसिल से नहीं लिखना है, पेन से लिखना है, बिकॉज when you write it down with pencil, हमारे अंदर ये थॉट आ जाता है कि पेंसिल इज ए टेम्पररी थिंग। अगर हमने कुछ गलत लिखा तो हम उसे इरेज कर सकते हैं, है ना, बट अगर पेन से लिखा तो उसे इरेज नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी नॉर्मल एंड कॉमन हैबिट टू राइट इट डाउन विद अ पेन। एनी कलर ऑफ पेन इज एक्सेप्टेबल, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेक योर जर्नल कलरफुल। जितना कलरफुल होगा हमें पढ़ने में भी वो मजा आएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है राइट फ्रॉम फीलिंग नॉट फ्रॉम फैक्ट। तो ये भी हमने देख लिया कि हमारे फीलिंग के लेवल पर क्या चाहिए, मैकेनिकली नहीं, और जो फैक्ट्स है उसके हिसाब से नहीं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे भी ऐसे आगे बढ़ना है। आपके फीलिंग से क्या आ रहा है? आपके फीलिंग में अगर ये आ रहा है कि आपको एक नेचुरल जगह पे, नेचुरल प्लेस में जहाँ पे पानी है या लेक है या गार्डन है, वहां पे जाके 1 घंटा रिलैक्स करना है, और ये फीलिंग लेवल पर आ रहा है आपको, और आपके फैमिली मेंबर को क्या फीलिंग लेवल पर आ रहा है कि चलो पिज्जा पार्टी करते हैं या चलो मूवी देखने जाते हैं, लेकिन आपके अंदर ये थॉट नहीं आया, तो आपको फीलिंग लेवल पर क्या आया है, वी हैव टू राइट इट डाउन दोज एंड कम्युनिकेट विद द पीपल अराउंड अस कि नहीं, मुझे जाना है इस तरह से, नेचर के बीच में जाकर बैठना है, थोड़ी देर रिलैक्स करना है, फ्रेश एयर लेना है। अंबाझरी गार्डन हम जाएंगे और वहां पर लेक है और वहां पे मॉर्निंग थोड़ा सा टहलेंगे तो मुझे वो अच्छा एनर्जेटिक फील करेगा, और ऐसा फीलिंग आ रहा है तो फर्स्ट यू हैव टू राइट इट डाउन। तो जो भी फीलिंग डे टू डे लाइफ में व्हाटएवर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेंस इमोशंस ही आपको लिखना है जर्नल में कि बस वही लिखना है। छोटी छोटी सी चीजें जिसमें भी आपको आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं, फीलिंग लेवल पर जो भी आता है आपको वो लिखना शुरू करना है जर्नल पे। डोंट जस्ट रिकॉर्ड व्हाट हैपेंड इन योर लाइफ, यानी सिर्फ हाँ आज ये हुआ, कल ये हुआ, फिर ये हुआ, सिर्फ हम लिखते जा रहे हैं बिना फीलिंग के, बिना इमोशंस के, तो वैसा नहीं करना है। वो जो हमारा डायरी राइटिंग के लिए ठीक है कि आज हमारा क्या एजेंडा था, कल क्या है, कल क्या प्लानिंग होगा, दैट इज ओके फॉर आवर डायरी राइटिंग, बट नॉट इन द जर्नल। जहां पे जर्नल वर्ड आया आपको उसको क्लब करना है फीलिंग एंड इमोशन। तो फीलिंग और इमोशन को जब मिक्स कर लेंगे तो वो हो गया जर्नल राइटिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, write down how your experiences affected your heart and emotions। तो ये एक्सपीरियंस के लेवल पर क्या चेंजेस आए, क्या आपके अंदर इमोशन गया, क्या आपको फीलिंग लेवल पर आया, क्या आपका अनुभव था, वो आपको जर्नल में लिखना है। तो ओवरऑल जो हम किसी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते, we have to write all those things in our journal। And the last point here is periodically review your entries to discover emotional and mental trends in your life। तो जैसे जैसे हम ये लिख कर आगे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जैसे once in a month आपको आपकी जर्नल खोलना है, ओपन करना है और उसमें पढ़ना है कि पिछले 1 महीने में मैंने क्या लिखा या पिछले 1 साल में मैंने क्या लिखा।
तो आप देखिए आपके पास जो भी लिखा हुआ कुछ स्टडी व्हाटएवर द रिटन डायरी अगर आपके पास होगी, तो आप अभी चेक करिए जो आपने 2 साल पहले या 3 साल पहले लिखी होगी, और आप अगर चेक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने चेंजेस आपके अंदर आए। एक एग्जांपल फेसबुक का शेयर करता हूं आप सभी के साथ कि फेसबुक में आजकल एक ट्रेंड चालू है कि 10 साल पहले आपने आज के दिन ये पोस्ट शेयर किया था, डू यू वांट टू शेयर इट अगेन ऑन योर टाइमलाइन और स्टोरी। तो वो पोस्ट पढ़कर भी आश्चर्य होता है कि 10 साल पहले मैंने क्या शेयर किया था। तो इसी तरह से जब हम रिटर्न में कुछ चीजें लाएंगे और बाद में जब हम पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलती जाएगी हमें कि कितने चेंजेस मेरे अंदर आए, कितनी चीजों के ऊपर मैंने काम किया। हमें सक्सेस लॉग भी बनाना है जर्नल पे। ओके, तो वो देखते हैं कैसे बनाना, कि एक सेक्शन आप बनाए सक्सेस लॉग करके, और वी हैव टू राइट इट डाउन ईच एंड एवरी सक्सेसेस विच वी गेट इन आवर लाइफ। छोटे छोटे सक्सेस जो मिले या बड़े बड़े सक्सेस जो भी मिले, वन बाय वन डेट एंड द डिटेल ऑफ सक्सेस जो भी आपको मिला सफलता, उसको आपको 1 या 2 लाइन में लिखना है। तो वो लॉग मिलेगा, और जब भी हम लो फील करें, फ्रस्ट्रेटेड फील करें, या दुख में है, सैड फीलिंग आई है हमारे अंदर, तो वो जो लॉग ऑफ सक्सेसेस है उसको पढ़ेगी, क्या क्या चीजें मैंने अचीव की है। तो उसमें भी छोटी छोटी चीजें जो डे टू डे लाइफ में होती है, किसी को हमने हेल्प की और वो हेल्प के बदले उसने थैंक्स बोला और उसके चेहरे पर खुशी आई, स्माइल आई, तो उससे हमें कितना अच्छा फील हुआ कि उस मेरे वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आई। तो ये आप वो लॉग ऑफ सक्सेस में लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी सफलताएं हमें मिलती है उसका एक लॉग बनाएं जर्नल में, और उसको वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ आप उसको विजिट करें और देखिए कि क्या क्या चीजें मैंने अचीव की है। ये एक मोटिवेशन देगा जर्नल में और एंट्रीज करने की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप सभी के साथ शेयर करने थे। एक लास्ट दो स्लाइड्स और है। I want to ask sir, is it okay to continue with the slides? I have 1 or 2 slides remaining. Yes, sir, you can continue. I think Ajay sir. I think it will be good if it is made short, because it is already Acha, हाँ, 1 hour Right, 50 right. minutes. So we Right. want our session for the questions also, right? Sure, Yeah, sure, right, sure. right. While answering the questions, that can be dealt with, I feel, if Right. Kuldeep sir don't mind that. Absolutely, absolutely. So what I'll do, I will cover it in 1 or 2 minutes, और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में हम इसको कवर कर लेंगे डिटेल में। Yes, please. Yeah. Okay, let's continue. So some of the examples की जर्नल राइटिंग में करना क्या है, तो मैं आपको बताते जाता हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे जैसे हम उसको जॉट डाउन करेंगे वो हमें आगे लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसके ऊपर भी हमने समझा कि जो भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जो भी आ रहे हैं, जस्ट व्हाट वी हैव टू डू इज राइट इट डाउन इन आवर जर्नल। और नेगेटिव थॉट्स के साथ क्या करना है, राइट इट डाउन इन सेपरेट पेपर एंड मेक अ लिस्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। और जो भी नेगेटिव थॉट्स है एक बार आ जाए आंखों के सामने, देन यू कैन टीयर इट डाउन और उसको आप जला के फ्लश कर सकते हैं, और ये फीलिंग लेवल पर ला सकते हैं कि जो भी मेरे नेगेटिव थॉट्स है इस एक्सरसाइज के थ्रू मेरे अंदर से निकल रहे हैं। फिर नेक्स्ट, व्हाट यू कैन इंक्लूड इन योर जर्नल राइटिंग, बुक्स। जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं और उसमें से हमें क्या क्लैरिटी मिली, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे या कोट्स थे, वो भी हम जर्नल में एंट्री कर सकते हैं। पीपल यू आर मीटिंग, जिन भी लोगों से हम मिलते हैं और उनके इन्फ्लुएंस हमें क्या एक्सपीरियंस मिलते हैं, किस तरह से हम अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हैं, और जिन भी लोगों के साथ हम कांटेक्ट बनाकर रखना चाहते हैं तो उन लोगों के बारे में अच्छा अपने जर्नल में लिखे। जैसे XYZ पर्सन है, फॉर एग्जांपल लेते हैं APJ अब्दुल कलाम, तो उनके बारे में हम क्या लिखेंगे, कुछ नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे ना, हम वी विल राइट एनीथिंग पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में जितने भी लोगों के कांटेक्ट में हम आ रहे हैं, जस्ट राइट समथिंग पॉजिटिव फॉर देम इन योर जर्नल। तो इससे हमारे रिलेशंस भी अच्छे होंगे और नेटवर्क भी बढ़ेगा। कोर्सेज यू आर डूइंग, जो भी कोर्स हम करते हैं और उसमें से क्या क्लैरिटी हमें मिली,
दो वो टेक्निकल कोर्स हो, स्पिरिचुअल कोर्स हो या whatever the learnings we have learned from that particular course, we have to write it down. Ideas you are creating, तो क्रिएटिव आइडियाज भी बहुत आते हैं, तो क्रिएटिव आइडियाज भी आप आपके जर्नल में लिख सकते हैं, कहाँ पर फ्यूचर में किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे एंड ऑल. चेंजेस दैट यू नोटिस अबाउट योरसेल्फ, तो हमारे बारे में भी चेंजेस जो आ रहे हैं. पहले मैं कैसा था, पहले मैं इंट्रोवर्ट था, अब एक्सट्रोवर्ट हुआ हूँ, या दोनों का मिक्सअप हूँ. जैसे सुशांत सिंह जो है राजपूत, जो सुशांत है, ही वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, और इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते थे, तो उन्हें उसके ऊपर काम करना जरूरी था. तो ये जब हम लिखेंगे ना जर्नल में, तो हमें पता चलेगा कि मेरी कौन सी क्वालिटीज है जिसके ऊपर मुझे काम करना है ना. कि एकदम एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बन सकते, बट मिक्सचर ऑफ इंट्रो एंड एक्सट्रोवर्ट हम कर सकते हैं. फिर परफॉर्मेंस रिव्यूज, तो जहां जहां पर भी हमने हमारे परफॉर्मेंस दिए, जो भी प्रोग्रेस हो रही है, सक्सेस ऑफ लॉग्स जैसे मैंने आप सभी को बताया, तो उस तरह का भी एंट्री हम जर्नल में कर सकते हैं. गोल्स टेम्पलेट्स, जो भी आपके आज के गोल है, ईयरली गोल है, लाइफ टाइम का जो बहुत बड़ा गोल है, जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन ऑल पार्ट्स, फिजिकल, सोशल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, ऑल 5 फेजेस जो है, प्लेन्स जो है, उन पर जो भी आपके गोल्स है, आप उसको लिखिए, और क्या क्या अचीव किया आपने, वो अचीवमेंट भी लिखिए. तो ये हम लिख सकते हैं जर्नल्स में. फोटोग्राफ्स ऑफ प्लेसेस, फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो जहां पर भी हम जाते हैं, कहीं भी पिकनिक पे गए, कहीं पे भी हम इंडिया में कोई भी ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे गए या आउट ऑफ इंडिया गए, वहां पे क्या हैप्पी मेमोरी थी मेरी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ गया, तो वो पर्टिकुलर फोटो प्रिंट आउट निकालिए और उसको स्टिक करिए जर्नल में. और आपकी जो हैप्पी मेमोरी थी वो क्या थी उस पर्टिकुलर प्लेस में जब आपने विजिट किया था. फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर गया कोई, और सिंगापुर में बहुत सारा एक्सप्लोर किया और बहुत मजा आया, तो वो फोटोज आप अपनी जर्नल में लगाइए, एक्स्ट्रा कॉपीज प्रिंट आउट लेकर, और आपकी हैप्पीएस्ट मेमोरी क्या क्या थी सिंगापुर टूर की, वो आप लिखिए. सो दैट कि जब आप लिखोगे तो वी आर एक्सप्रेसिंग आवर हैप्पीनेस विद द नेचर, और उस तरह की चीजें बार बार हमारे लाइफ में रिपीट होगी. द नेक्स्ट थिंग इज टिकट्स फ्रॉम द इवेंट्स यू हैव अटेंडेड. अब ये ऐसी चीज लगती है कि टिकट्स को क्या रखना संभाल कर, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट. जब आप वो टिकट्स को अपने जर्नल पे स्टिक करेंगे और आप उस पर लिखोगे कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में गया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था. फॉर एग्जांपल AR रहमान का म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आप गए, मुंबई या दिल्ली या पुणे या वेरेवर, और वो टिकट को आपने संभाल कर रखा, तो ये एक मेमोरी में जाएगा. और मेमोरी जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो इमोशंस हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तभी तुरंत कि मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने AR रहमान से मिला, है ना. बहुत से लोग फोटोज और सिग्नेचर्स, ऑटोग्राफ क्यों रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि वो हैप्पी मेमोरीज हमारे अंदर से फिर से एक्सप्लोर हो. द लास्ट पॉइंट इज ईमेल एक्सट्रैक्ट लेटर्स एंड नोट्स यू रिसीव. कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं, थैंक यू नोट्स मिलते हैं, या ईमेल्स में हमें एप्रिसिएशन के लेटर्स मिलते हैं. तो ये सारे जो चीज है ना, इसको हमें फोल्डर में नहीं रखना है, एक सॉफ्टवेयर कॉपी बनाकर, सॉफ्ट कॉपी बनाकर प्रिंट आउट निकालिए उन सभी का और अपने जर्नल पे स्टिक करिए, ताकि जब भी हम उसको देखें तो वो फीलिंग लेवल पर आए कि यस, आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस माय लाइफ. सो आइडियाज बहुत सारे हैं जर्नल पे. सॉरी, कोट्स एंड अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो ये लास्ट ऑप्शन था कि जितने भी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कोट्स या फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, वो भी आप जर्नल में लिखिए. तो बेसिकली ओवरऑल हमें ऐसी सब चीजें जर्नल में लिखना है जिससे कि हमारा फीलिंग गुड फैक्टर हो, मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, और हमारा जो इमोशनल कोटेंट है वो बढ़े, सेल्फ अवेयरनेस बढ़े, और इन सभी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं तो हमारी सेल्फ ग्रोथ भी होगी. सो आई होप आपको आज बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें इंक्लूड किया, और वैसे अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं. Here I will end my session here. Thank you very much for giving me the opportunity to share few points with all of you. Thank you. Thank you, sir. Shikha madam, now it is over to you. Yes. Yeah.
Thank you so much, Kuldeep sir. I'll just brief and be sententious whatever you said just now. There were too many good examples which were being given by you, starting from Bruce Lee, then Oprah Winfrey, Sachin Tendulkar. We had J.K. Rowling. I'll just incorporate one more, the owner of KFC, but I'm not remembering the name. बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ में आप बताया कि हमको अपने बिहेवियर को, अपने पर्सनालिटी को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, विच इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी बीइंग टीचर्स रेगुलरली, usually and regularly combat with many a situation at our workplace. Some days are very nice, some are gloomy. So and the situation is such कि घर पे आकर हम लोग उस सिचुएशन को घर पे नहीं ला सकते, राइट? सो दिस इज वेरी गुड थिंग दैट वी कैन पेन डाउन इमोशन, वी कैन डू सो मेनी थिंग्स. एक छोटा सा चीज और एक एग्जांपल मैं इसी में थोड़ा सा अडॉप्ट करूंगी. आपने सुशांत सिंह का जो बताया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने बताया, लेकिन मुझे ये बोलना था कि अगर ये सारी चीजें पहले से he would have taken care of, or if people would have noticed that he is really going through a very rough patch, तो शायद से एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हमारे बीच आज बिल्कुल होती. क्योंकि एक कुछ 7 to 8 days पहले ही अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड का ने जो या उनके साथ में जो हुआ, तो उसके बाद में जिस प्रकार का वो रोष निकला था अफ्रीकन अमेरिकन द्वारा, तो आप विश्वास नहीं करोगे, एक 22 साल की बच्ची ने डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी में she changed the meaning of I'm so sorry, I'm not racism का मीनिंग उसने चेंज कर दिया. तो सर दिमाग किसी भी तरफ दौड़ सकता है, लेकिन कभी फ्रेंड्स बना के आप उसको शेयर कर लो, और अगर नहीं कर पाओ तो पेन आपका सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो सकता है. इसको आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस फोरम पे बताया, एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू. एंड नाउ सम क्वेरीज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, सो आई होप यू विल जस्ट be there. Yes. First question is from Baldev Ade sir. Yes sir, over to you. Hello, Kuldeep sir. Yes sir. Sir, I have seen that we have teachers who are very active and positive, and when when we think to carry out some positive and constructive activities, there are some teachers who taunt and discourage to carry out that activities. At that time, what should we do actually? There are teachers who express negatively, they taunt, they discourage. What should we do at that time? Yes. So basically this comes under, this is an example of where we have to take some actions, right? कि अगर इस तरह से कोई टीचर इस बोल रहा है, तो what we have to change in our talk, we have to in the way what we have to communicate with them. जैसे अगर एग्जाम्पल है, बच्चा है और वो मस्ती कर रहा है, और वो मस्ती कर रहा है तो पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आवाज मस्ती मत करो, और खूब जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने दरवाजा खूब जोर से पटका, बंद किया खूब जोर से, और डैड को गुस्सा आ गया कि ये इतने जोर से क्यों बंद किया. तो हम क्या बोल रहे हैं कि तुम मस्ती मत करो, या दरवाजा इतने जोर से बंद मत करो, और चिल्ला के बोलते हैं लाइक दिस. तो वहां पर क्या चेंज करना है, हमारे सेंटेंस में चेंज करना है कि दरवाजा धीरे बंद करो. जब हम कम्युनिकेट इस तरह से करेंगे बच्चे के साथ, तो उसको ये समझेगा कि जो दरवाजा है जोर से नहीं पटकना है, और इस तरह के शब्दों का यूज न करते हुए दरवाजा धीरे से बंद करो. तो सिमिलरली ऐसे केसेस में जहाँ पे टीचर इस तरह से बोलते हैं, तो व्हाट वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवर कम्युनिकेशन पैटर्न, की जो रिजल्ट चाहिए उनका फोकस रिजल्ट पे करवा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, ये इवेंट अगर हम करते हैं, तो वो इवेंट करने से बच्चों को क्या फायदा होगा, या स्कूल को क्या आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. वी हैव टू फोकस ऑन देम. जो रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट, तो एंड रिजल्ट को प्लेस करते हुए वो टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना है.
और वन मोर थिंग इज देयर कि क्योंकि क्वेश्चन आया सर आपके तरफ से कि जब भी हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहे तो वो शब्दों में कम्युनिकेट करते हैं, राइट? बट जब हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहें तो उसके पहले थॉट्स में भी कम्युनिकेशन होता है। तो जिस भी पर्सन के साथ हमें कम्युनिकेट करना है और जो भी हम उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं पॉजिटिव चीजें, तो उसके साथ थॉट्स में पहले कम्युनिकेट कर लिया जाए। उस पर्सन को थॉट के लेवल पर विचारों में बोल दिया जाए कि ये चीजें मैं आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला हूं और ये चीजों के साथ आपको काम करना है। तो थॉट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी हम अगर किसी पर्सन के साथ बात नहीं भी कर रहे हैं और उस पर्सन के बारे में हम विचार कर रहे हैं, तो हम देखते हैं ना थोड़े दिनों बाद या उसी दिन शाम को उस पर्सन का कॉल आ जाता है या हम कुछ कारणों से कॉल कर लेते हैं। कभी कभी सामने वाले का ही कॉल आ जाता है कि अरे आपके बारे में ही तो सोच रहा था, मैं आपके बारे में ऐसा सोच रहा था कि आपसे बात करूंगा। सो दैट इज द प्रूफ कि थॉट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। हम किसी पर्सन के थ्रू किसी पर्सन के लिए अगर नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो थॉट्स के लेवल पर कम्युनिकेट हो जाती है और वैसा रिएक्शन उसको फीलिंग और इमोशन के लेवल पर आता है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट कम्युनिकेट पॉजिटिव थिंग्स विथ प्रॉपर वर्ड्स इन थॉट्स। विचारों में कम्युनिकेट करना है और फिर एक पॉजिटिव एंड रिजल्ट के साथ उनके साथ कम्युनिकेट करना है कि उनको ये फोकस करवाना है कि रिजल्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट बाय डूइंग दिस एक्टिविटी विद चिल्ड्रन। तो इससे उनके अंदर चेंजेस आना पॉसिबल है। बट फर्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट इट डाउन ऑल दोस थिंग्स कि मैं जो भी कम्युनिकेट करूंगा, जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, टीचर्स, जो भी है, सबसे मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो बेस्ट होगा और मेरे कम्युनिकेशन से वो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट टीचर में भी आएगा। हाँ, तो हमारे एक टीचर ने Next. सर हमारे एक टीचर ने अभी एक गाना लिख के भेजा, सुदर्शन गोस्वामी सर ने। वो बोलते हैं कि कुछ तो लोगों कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Yes. Yes. Next question is from Mohammad Irfan sir. Thank you, Ade sir. Yes sir. Okay, thank you Shikha ma'am. जी. Hello, hello Kuldeep sir. Yes sir. Are you listening me? Yes. बोलिए सर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे सॉफ्ट मैनर में बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। इसके लिए इंग्लिश फोरम की टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा जो क्वेश्चन है सर, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि लाइफ में टेंशन तो ऑलरेडी है ही, सभी की लाइफ में है, पहले के लोगों की भी लाइफ में टेंशन रहते थे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अभी की जो जनरेशन है, चाहे कोई भी हो, बच्चे हैं, जवान है, सब डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं और मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। पहले ये केसेस देखने में नहीं आते थे, जबकि पहले लाइफ बहुत सीमित थी। आज तो मतलब इंटरटेनमेंट की बहुत सारे सोर्सेस अपने पास अवेलेबल है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ हम में कमी हो रही है, कहाँ हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है मतलब सुसाइड केसेस बढ़े हैं। ये क्वेश्चन है सर। दूसरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि जनरली जैसे क्लासेस में देखने में आता है कि हम बच्चों से पूछते हैं उनके गोल के बारे में कि लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का देख के ही बताते हैं। किसी ने डॉक्टर बोला वो भी डॉक्टर बोलते हैं, और किसी ने इंजीनियर बोला तो वो भी इंजीनियर बोलते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनकी फैमिली काफी अच्छी एजुकेटेड, वो पहले सेट करते हैं। बाकी मैक्सिमम बच्चे जो अपना नहीं बता पाते, वीडियो और कुछ अच्छी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, तो वो सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गोल सेट नहीं करते। तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं गोल सेट करें। 2 क्वेश्चन। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है कि हम जो डे टू डे लाइफ में अवेयरनेस है वो कम क्यों हो गया है, राइट? ये इस तरह का आपने था। एक बार चाहो तो रिपीट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, कि जी, पहले जो लोग थे वो सुसाइड जो है नहीं सुनने में आ रहा, जनरेशन में सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं, तो उनमें और हम में कहाँ पे कमी हो रही है कि हम जो है उससे कर रहे हैं। पहले लोग मतलब कॉन्फिडेंस लेवल था उनका, वो थोड़े थे, स्ट्रेंथ थी उनके अंदर। देखिए, सबसे पहले जो कल्प आज के डेट में वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया इतना ज्यादा लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं, यूटिलाइज करने लगे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह से सोशल मीडिया को भी हम खाते हैं।
हम इन आई मीन टू से कि जो यंग जनरेशन है वो इतना ज्यादा उसमें चले गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो अटेंशन पीरियड है वो बहुत है। मेरे जो रहते हैं उसमें मैं डिटेल में ये पॉइंट को कवर करता हूँ। अटेंशन पीरियड हमारा एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। गोल्ड पीरियड टाइम 8 सेकंड का है। 8 सेकंड तक वो एक किसी चीज पे अटेंशन रखती है गोल्ड फिश। तो उससे कम हो गया है 6 सेकंड्स या 5 सेकंड्स या उस कम। तो इस एग्जांपल कैसे है कि किसी भी यंगस्टर के हाथ में कोई भी पोस्ट अगर उसको देते हैं तो विद इन 2 to 3 सेकंड्स वो उसको स्क्रॉल अप करता है, स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर देता है। इतना कम अटेंशन पीरियड हो गया और फोकस उस पर ज्यादा हो गया है कि सामने वाले ने ये किया और मैं ऐसा क्यों हो रहा है। यानी सामने वाला वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहा है, टूर पे जा रहा है और मैं एक ही जगह पर बैठा हुआ हूँ। तो दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक केस कि जहां पर सोशल मीडिया के थ्रू हर इंसान अपने आप को कंपेयर करने लगा है। अगर सामने वाला इंसान, जैसे अगर कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट है और वो क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो वो बाकी क्रिकेटर्स को देख के खुद के साथ कंपेयर करता है सोशल मीडिया के ऊपर कि देखो उसको अपॉर्चुनिटीज मिली, मुझे नहीं मिली। हालांकि उस पर्सन को भी क्लियर नहीं है कि क्रिकेट के फील्ड में मैं एक्सपर्टीज लेवल पर जाऊंगा कि नहीं या मेरा फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं। लोगों को देखकर मैंने क्रिकेट सीख लिया और मुझे थोड़ा बहुत क्रिकेट पसंद है। एक फ्रेंड है मेरे, उनका जो लड़का है 10th क्लास में है और 10th क्लास में अभी से वो डिमांड 10th की एग्जाम में तभी दूंगा जब आप मुझे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन दोगे, अदरवाइज मैं 10th भी नहीं क्लियर करूंगा। तो उसके फादर ने बोला कि भाई कम से कम तुम 12th और ग्रेजुएशन तो कर लो, फिर तुमको जो करना है करना। तो वो एग्जांपल्स देता है कि आईपीएल में ऐसे है, तेंदुलकर जिसने 10th क्लियर नहीं किया या 12th क्लियर नहीं किया। तो ऐसे एग्जांपल्स कहाँ से मिल रहे हैं लोगों को? सोशल मीडिया से मिल रहे कि देखो उसने कर दिया बिना पढ़ाई किए, इतना वर्ल्ड फेमस बन गया, तो मैं भी बन सकता हूँ। तो ये कंपैरिजन हो जाता है सोशल मीडिया पर और खुद के अंदर कौन से क्वालिटीज है वो चेक नहीं कर पाता या गाइडेंस उसको पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल पाता। तो इस वजह से कंपैरिजन के चक्कर में ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स बहुत होते जा रहे हैं। जबकि जैसे सुशांत सिंह का एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो कितने सारे लोगों ने ट्वीट किया है, कितने सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे उसके पोस्ट डाले हैं कि देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब आज लोगों के बीच में ये शेयरिंग करने की होड़ लगी है कि आप देखो सबसे पहले मैंने शेयर किया सुशांत सिंह का ऐसा हो गया। और साइकोलॉजिस्ट भी है, जैसे मेरी वाइफ भी शी इज साइकोलॉजिस्ट, माय वाइफ इज पोर्शिया, एंड हम काउंसलिंग करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी है जो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि देखो सुशांत सिंह जैसा आपका ना हो जाए। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो पर्सन किस भावनाओं के थ्रू गया, किस इमोशन के थ्रू गया, वो समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि सोशल मीडिया का यूज करना हमें कम करना होगा। पहले के जैसे अगर हमें अपने आप को या फ्यूचर जनरेशन या जो अभी यंग जनरेशन है उनको, दे शुड बी फोकस्ड ऑन आवर कल्चर्स। हमारा जो पुराना इंडियन कल्चर है उसके तरफ जितना ज्यादा फोकस होगा, और इंडिया का देखकर चाइना, रशिया में लोग हिंदी, संस्कृत सीख रहे हैं और संस्कृत में तो लोगों ने प्रोग्रामिंग तक की है। आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि संस्कृत भाषा को प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो इतना वास्ट हमारा कल्चर था। तो जो भी चीजें हैं, क्योंकि जब तक फोन जैसा एक गैजेट हमारे पॉकेट में रहेगा तब तक ग्रोथ में प्रॉब्लम है। टिकटॉक जितने लोग देख देख कर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तब तक उनके लाइफ में ग्रोथ नहीं होने वाली। सो इसीलिए मैंने ये टॉपिक शेयर किया था कि राइट डाउन योर इमोशंस। आप अपने गोल्स लिखो तो दैट आपके गोल्स अचीव होंगे, रिमाइंडर्स मिलेंगे। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि गोल्स के लिए मोटिवेट कैसे करना। तो इट इज द वेरी वेरी सीरियस थिंग इन टुडे स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि उनको पता ही नहीं है कि आगे क्या बनना है, क्योंकि सोशल मीडिया और लैपटॉप और गेम्स में इतना वो इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनको और कुछ चीजें मालूम ही नहीं है। और अगर हम कुछ बोलते हैं उनको तो वो सुसाइड की धमकी देते हैं पेरेंट्स को कि आपने अगर कुछ ऐसा किया तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो इसीलिए इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स को ये बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि शब्दों का प्रयोग, यानी हम किन शब्दों का यूज करते हैं कम्युनिकेशन में, ताकि वो सामने वाले स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को कम्युनिकेट हो पाए।
तो इसका एग्जाम्पल मैं आप सभी को, क्योंकि टाइम कम है इसलिए एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। तारे जमीन में जो आमिर खान की पिक्चर थी, और जब वो एक आर्ट क्लास लेता है और उसमें सब अलग अलग डिसलेक्सिया जिन जिन लोगों को हुआ था उन सबके फोटोज दिखाता है और उन्होंने कैसे लाइफ में बहुत बड़ा कुछ अचीव किया। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स दे दे के हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के टॉक्स है यूट्यूब पर, हम वो सुना सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने तो स्टूडेंट्स को डायस पे बुलाकर उनसे पूछा है कि तुम्हारा गोल क्या है, और उनको अगर गोल नहीं क्लियर था तो वहां पे वो क्लियर करवाते हैं कि देखो रिपीट करो मेरे पीछे। तो प्लीज आप जरूर यूट्यूब पे सर्च कीजिए अब्दुल कलाम विद स्टूडेंट्स, तो आपको वो वीडियोस दिखेंगे। और उसी तरह की चीजें हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अवेयर करवा सकते हैं एटलीस्ट अपने तरफ से कि मोबाइल का यूज कम करिए, गेमिंग का यूज कम करिए, और प्रैक्टिकल उनको एक्टिविटी जैसे गार्डनिंग हो गया, पिकनिक पे जाना, कुछ एजुकेशनल टूर्स उन पर ले जाकर हम उनके साथ उनको मोटिवेट कर सकते हैं गोल सेट करवाने के लिए। Sir, the next question would be by Rajesh Boyer, sir, and I'll just request sir to be little brief because the time we are short of time actually. Yes, yes, yes. Thank you, sir. Hello, are you getting me, sir? Yes, 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 yes. I am Rajesh Boyer. Yes, sir. सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो डायरी राइटिंग है ये हाउ मच इट गोज हैंड इन हैंड विथ प्राइवेसी एंड हाउ मच इट कॉन्फ्लिक्ट विथ प्राइवेसी, कैन यू इलैबोरेट ऑन दिस? Yes, yes, yes. See, diary writing or rather journal writing is something like that कि in which you are sharing your all feelings and emotions. इसमें आप अपने अंदर जो भी है वो आप पूरा का पूरा पेपर पे लाने वाले हो, और that is the only correct way to overcome our emotions और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इन सब चीजों को देखना जरूरी है पेपर पे। बट दैट अगेन इज द क्वेश्चन कि प्राइवेसी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें दो चीजें हम कर सकते हैं। यस, वी नॉट हैव टू शेयर आवर जर्नल विथ others, even our family members, even with our पार्टनर, लाइफ पार्टनर। जैसे अगर हम मैं हस्बैंड हूँ तो मेरी वाइफ के साथ मुझे शेयर नहीं करना है, लेकिन अगर हम दोनों में ट्यूनिंग है तो शेयर करे और उसको कोई तकलीफ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अदर फैमिली मेंबर्स के साथ तो शेयर नहीं करना है। और इसके लिए द वन थिंग इज यू हैव टू कीप योर जर्नल प्राइवेट और सिक्योर, यानी आपको लॉक किया इस तरह के कबर्ड में कहीं पे आप अगर सेपरेटली रख सकते हैं तो आप उसको रखना है नेगेटिव चीजों के लिए। क्योंकि हम बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने ऐसा भी पूछा था कि सर नेगेटिव चीज अगर आती है और किसी ने वो पढ़ लिया, तो उसके लिए मैंने आपको सेपरेटली बताया है कि राइट इट डाउन ऑन अ सेपरेट पेपर। अदरवाइज पॉजिटिव चीजें आप जर्नल में कर सकते हो। और द सेकंड थिंग इज कि सिंबल्स में आप कोड वर्ड्स या सीक्रेट जो शॉर्ट हैंड रहता है जिसमें कि सिंबल्स रहते हैं, उसमें हमको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस करके हम उसमें उस तरह से लिख सकते हैं। बट बेस्ट थिंग इज कि कीप इट प्राइवेट, आप किसी को शेयर मत करिए। और ऐसा अगर कोई मतलब ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई देख सकता है तो लॉक इट डाउन और किसी कवर्ड में या कहीं पे रखिए, सो दैट कि nobody else will able to access your personal journal. क्योंकि इसमें इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। the next question would be from Deepika Gode ma'am. हाँ, थैंक यू शिखा फॉर आस्किंग मी। सर आपका तो वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा एंड इट वाज द नीड ऑफ टाइम। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ सर कि ये जो जर्नल राइटिंग है इसमें और रिफ्लेक्शन में क्या कोरिलेशन है? ओके, तो जर्नल राइटिंग के अंडर में ही मैम रिफ्लेक्शन आता है। एक्चुअली आज का क्योंकि डिटेल नहीं था तो देयर आर 4 वेरियस मोड्स ऑफ राइटिंग इन अ जर्नल। वो मैं डिटेल में नहीं जा पाया क्योंकि टाइम उतना नहीं था। एक्सप्रेस करना होता है अलग अलग 4 मोड में। तो इंट्यूटिव टाइप की राइटिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और इंटेंस इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये 4 अलग अलग तरह के होते हैं। तो जर्नलिंग में इट्स अ वन पार्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्शन मींस आपको जिस भी इवेंट में, जिस भी सिचुएशन में आपके अंदर से कंटेम्पलेट क्या हुआ, कोई भी इवेंट हुआ और वो इवेंट हो जाने के बाद आपको क्या क्लैरिटी मिली, देन वी कैन राइट इट डाउन इन आवर जर्नल। तो रिफ्लेक्शन के अंडर में वो आता है। और डिस्क्रिप्टिव में यह आता है
कि कोई भी इवेंट हुआ, वी हैव टू राइट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, सो दैट वो हमारे थॉट्स में रहे, मेमोरीज में रहे. जब भी हम पढ़े तो हमें ये क्लियर हो कि ये पर्टिकुलर इवेंट मेरे लाइफ में आया था और उससे मुझे क्या चेंज मिला, क्या क्लैरिटी मिली, क्या शिफ्टिंग मिली. फॉर दैट पर्पस वी कैन राइट इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट. और रिफ्लेक्शन में जस्ट हमारे जो थॉट्स है, we have to write in that particular Yes. journal only. Yeah, we'll just take two questions more, sir. And again, I'm asking you to be little brief. For this next question would be from Sudarshan Goswami, sir. Sudarshan Goswami, sir. Can you hear me? Sudarshan, sir, I've already unmuted you. Okay, by the time he comes, Teresa George, madam. Teresa George, madam, she is also there to ask a question. Sudarshan, sir, if you're ready. Hello, Goswami, sir. Okay, there is one more question, and the name she did not enter by name. EFN 3 मॉडल है, EFN 3. मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप क्वेश्चन पूछ सकती है. There are five, six EFN 3, ma'am. नहीं, रेज किया है, उन्हीं को किया मैंने एक्चुअली. Okay. The one who has raised hand. Okay, कुलदीप सर, by the time आप अपना नंबर जरूर फ्लोट कर दीजिएगा, हम उसको फोरम पे डाल देंगे. And okay, these two I have already. Hello, Shikha. हाँ जी, हाँ. Yes, Teresa is ma'am. not getting unmuted, huh? She wants to ask the question. Okay. Yes. Okay, I'll just help you. Yes. Yes. I have unmuted her. I'm so sorry. Teresa, ma'am. Teresa. Hello. Yes. But my video is not on. Okay, I'll do that. But by the time I do, please आप अपना question carry on कीजिए. Okay. Can I start with my question then? Yes. Sir, congratulations, Kuldeep sir. What I have understood from your talk today is that we are going to the older ways of living life. You know, we used to read that great writers, essayists, they used to write diaries. Now, because of new technology, we are away from writing. Totally, we are away from writing. Even our great leaders and freedom fighters also wrote letters when they were in jail. Okay, so what is my question? My question is that, as you have said, we can have individual diaries. Okay. Right. Okay. 1 minute. I'm starting my video. Okay. We can have individual diaries. So can we have a family diary also, like in which we can put on the objectives, goals and opinions of our family members, and so that we can work together collectively towards realizing that goal? Because if we want our family to achieve some goal, we need everybody's cooperation, in the family. Not if I try, so it won't be possible. I want my husband also, my children also to participate. So can we write together also? This Yes. is what I'm asking. Of course, even I have written a journal, or we have one journal which I and my wife share that journal. जिसमें कि what our together जो भी goals है, whatever the goals we have, we can write it down in that particular journal. Throughout all the members, whatever the feelings and thoughts they have, they can entry, each and everyone can entry in a single journal, and you can make a family journal wherein each and every person can write their own goals or collective goals. में क्या करना है, कैसे करना है, what we have to do in the coming years and all. Yeah, but I will suggest you कि you create your personal journal also, because in personal journal what we are going to write is our feelings and emotions, जिसके ऊपर आज का topic था, that will not be shared with any of the other person in the family. Yes, Sudarshan sir.
Thank you. Yeah, Sir. thank you, thank you. Sudarshan sir, are you there? Sudarshan Goswami sir, He is there. Unmute him. I have already done. He's already unmuted. His video is also being Yeah. on. He's not audible. Okay, okay, okay. Ajay sir, can we proceed further? Yes, ma'am. Yes. Please now. Yes, yeah. I'll ask Sarika madam to give the vote of thanks. Sarika ma'am. Yes. Before that, can I request Mr. Kuldeep sir to stop sharing the Okay, screen, okay. please? Screen. Yes. Yes, right. Yeah, I've stopped the screen. Okay, thank you, sir. Yeah, Sarika ma'am, please. Hello, Over Shikha, to you. am I audible? Yeah, you are Yes, audible. yeah, Okay, Sarika. Huh. Shikha. Okay, Huh. thank you so much. Thank you, all of you. First of all, I would like to extend my hearty thanks to the English Forum Nagpur, one of the finest platform for all the expertise of different fields. I'm feeling very proud to be a member of this forum, and I would like to thank all organizers. And to Kuldeep, sir, what should I say? I mean, he has taken us to another level of thinking. He has given us a new vision towards life. I'm very thankful to Mr. Kuldeep Bhan, who has given us a new vision towards our life, and who has also told us the importance of our oceans, our Ajay sir, her voice is breaking. Hello? Yes, ma'am. Her voice is breaking. Yes. Yeah, just huh. Maybe it's the network problem at her. Yeah. Okay. If she is not audible, I'll just go forward. Thank you so much, Kuldeep sir, again from English Forum. And if Ade sir is there, I'll just request him to be there. Ade sir is there, Ajay sir? Yes, Ade sir is there. हाँ, अरे सर आप वोट ऑफ थैंक्स को प्रोसीड कर दीजिए. सारिका इज नॉट एबल टू बिकॉज वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद. Ade sir, please unmute yourself. Yeah. Okay. Yes. Please conclude, sir. Yes. Kuldeep sir, it was a wonderful session, and we have got a lot from you. And for your information and for all information, I have noted all the points that we have spoken here. Thank you very much. You have come to English Forum and guided us, and we hope that you would come again and guide us. Most of the teachers have missed your speech today, lecture today, and really it was a wonderful session, and we have been benefited a lot. Thank you, Kuldeep sir. Yeah, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you everyone. Thank you, everyone, for all. joining, making it live. Thank you so much. Wonderful session, Thank Kuldeep you, sir. one and all. Thank you so much. I'm Thank you, Yeah, thank you. closing this meeting now. Yes, sir. You Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. Special thanks to Okay. Mr. Kuldeep Bhan sir, who has you. wonderfully done this presentation. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yeah.